Initial cost for the installation of this power plant was 1.2 lakhs. But and the first plant having a two numbers of 65 kilowatt Crompton Burton single phase 2300 volt 83.3 hertz alternator speed. India's first hydroelectric power stations 2 into 65 kW capacity was commissioned on 10th November 1897. The hydropower plant was inaugurated by Sir C.C. Stevens, the then acting governor of the Bengal. As the demand started growing more than 135 kW, a set was added in 1905. Then another 135 kilowatt set was further added in 1909 in the same powerhouse. This is the photograph. Today also, if you go to the Darjeeling, you can see it as a museum. Today is also, yeah. चला गया. Where? Then another 135 kW set was further added in the 1909 in the same powerhouse. These are the photographs. This is another photographs, and this is the last photograph. Thank you and wish you a happy Power Day. Now we are okay. Thank you. So, on behalf of Society of Power Engineers and Institute of Engineers, Vadodara Local Center, I invite everybody. I request the Dr. Satish Joshi sir to speak about the lectures and say about the further activities of the Institute of Engineers, Vadodara Local Centers. On behalf of Institute of Engineers, Vadodara Local Chapter and Society of Power Engineers, I welcome you on this celebration of the World Power Day. And the topic has been selected as earthing. Now, if you see, the earthing is a very important aspect of our life. If you see the plug, you will find that the larger hole has been kept for the earthing. So if the earthing is proper, you are safe, and that will lead to safety. I will not take much on earthing because the learned speaker will deliver more, but the earthing is very important. If the earthing was proper, we would not have faced during the flood the 3 days or 4 days power cut. Because of safety, they have to cut the power, but if the earthing was proper, they can continue the supply. So the earthing is now you can understand the importance of earthing. Thank you very much. You sir, would you like to say something? Okay. So I request the Institute of Engineers to welcome the speakers by honoring the bouquets and the certificate. One more. Thakkar sir is the past secretary of the Institute of Engineers, Vadodara Local Centers. I request the Mohan Tilvalli sir, chairman of the Society of Power Engineers, say something about the Society of Power Engineers, Vadodara chapters, further activities, and also to welcome the audience. Good evening, everyone. Well, I welcome you all today
for this. First of all, two things. One is the Power Day, that is tomorrow, but we are holding it today. Second is today's lecture. So respected members seated in the dais, Rani sir, Dr. Satish Kumar Joshi sir, K.U. Thakkar sir, Y.V. Joshi sir, other senior members who are seated off the dais, Takalkar sir, Prabal Rana sir, all other members, invited guests, ladies and gentlemen. As I said rightly, earthing is extremely important. Well, we come to know only when we get a shock that there is something called as earthing. Otherwise, we would not have known about it. When we get a shock, why did I get a shock? Because earthing is not okay. What is this earthing? So that is our knowledge of earthing. So earthing comes into picture only when I get a shock personally. If somebody gets a shock, we don't bother about it. But if I get a shock, I am interested why the earthing was not okay. Another thing I found that I have had very good teachers, professors everywhere in the college. But one topic we have never touched in the syllabus. I did my MTech from IIT Bombay also. There also, there is not a single topic on earthing. So our knowledge about earthing is so bad. Yet as I said, we come to know only when we get a shock. As you know, electricity you can never see, but you can feel electricity. You can see the effects of electricity, but you cannot see electricity. You can feel the shock. Then you know there is something called as electricity. So there is lots of things about earthing. In fact, I myself was discussing with Nanavati sir that I have got many problems about earthing because we are manufacturing instruments where we are dealing in control as well as power. So many people say control earthing should be separate, power earthing should be separate. I said, can you tell me a little more about all these things? Because I am interested. Because the people say your electronic circuit is failing because your earthing is not okay. So earthing is not only related to safety, but also related to the proper working of the various kinds of instruments. We find a lot of CNC people, they say, Baba, I want a separate earthing. There are so many, every such big machine manufacturer, he says that separate earthing is required. So I really don't know what is correct, what is not correct. I am sure K.U. Nanavati sir will be able to throw more light on this. As far as the activities of the Society of Power Engineers is concerned, I can only say that we are having a lot of monthly lectures, we are having seminars. Just recently, we had a seminar on this fire and it was a very good success. Previous to that, we had something on civil engineering. That also was a success. But what we are having now, planning to have a seminar on industrial automation. That is going to be on some 7th or 8th January, which I am sure will be a very big success because this subject is one of the most interesting subjects ever possible in the history of engineering. Because nowadays you need automation everywhere. In fact, automation is already there at homes, but we don't even know that it is called as automation. Your fridge, your AC, everything is automation. You don't even know. So that seminar we are having on the 7th or 8th January, a 2-day seminar. I want more and more people to come. We want to canvass people so that we can have more delegates so that who can attend and make the function a grand success. Another thing I want to tell you is that we are thinking of having an office. As you know, last time we have been discussing this issue every time. We are about to get the second office at Mona Lisa by next week. But we are in need of donations. I request all members who have still not donated to donate freely so that we can really start using that place and we can have some funds, extra funds.
I don't think I got anything else to say. Of course, I also knew Dr. B.G. Desai very well. Because whenever that community science program was there, he used to call me for giving 1 or 2 lectures. And I always admired him because such a senior person. He was also from IIT Bombay, so we had some bond together. Although he did it 5 years earlier. I did it in 73, he did it in 68. He did his PhD while I did my MTech. So that was the difference. But he was a really great man. He always had very good affection for me. Somehow I don't know why, but he used to like me. He has come to my factory also, he has seen my factory also, he has appreciated whatever I have done. So I am really thankful to him. May God rest his soul in peace. Thank you very much. So I request the YV Joshi sir to introduce the speakers. Good evening. Welcome to this next series of monthly lecture. Today we have selected a topic of earthing, very relevant and important. Earthing and fire, they are both interconnected. After the conference on the fire protection system, we have selected this topic for earthing. And today we have a renowned speaker on this subject, Engineer Keyur J. Nanavati. He is an electrical engineer having 12 plus year of experience. He is in the business of earthing materials, but he is a co-founder of 3 companies. He is a director of 3 companies specialized in this earthing and lightning protection systems and the techno-based earthing solutions. He has trained more than 5,000 engineers on this topic, on this subject, and one of his venture is the ETP Earthing Company, which is being accredited in several government organizations, departments, including the Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar and Delhi. Additionally, he is an active member in the several national platforms and national and international platforms. BNI Greater Surat, CBIP, our parent company, parent organization, SIGRE, and the Society of Power Engineers. Because of his involvement in all these organizations, that highlight the commitment to the networking, professional development, and staying at the forefront in the industry for the best practices. He has published more than 10 technical papers in various national and international conferences. He believes in the every obstacle can be an opportunity for us to grow. I welcome Mr. Keyur to deliver his lecture on the earthing. Keyur, please. नहीं, अभी wait है, 2 मिनट के बाद कर लेंगे इसका. Hello. So before starting this, this is a one book or that is going to be launched. क्यों जाएगी जगह पे बात कर लेना, बात में कर लेना. So this is the book. Please open the book. He is delivering the YouTube lectures free of charge. Only you have to get your self registrations. At least 2 lectures in a month. Yeah. Open कर दीजिए सर. रिबन निकाल दीजिए. Remove the ribbon. खींचो. So on YouTube he is available, and also if you register your mobile number, so he will send the link to you. And every 15 days, fortnightly, there will be free lectures from the different experts on the earthings. Okay.
Thank you. Now I request the dignitaries on the dais to take the seats on the front of the auditorium and let us start the lectures. I think. Oh, much late. Good evening all. First of all, SP વડોદરા ચેપ્ટર્સ જેમણે અને IEI એન્જિનિયરિંગ इंस्टीट्यूट જેમણે एक मैंने एक पाछो एक और मुझे एक चांस दिया जहाँ पर मैं अर्थिंग का नॉलेज आप सबको मैं इजीली और इजी वे में शेयर कर सकता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अर्थिंग जहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ मैंने देखी है कि अर्थिंग की बात करते हुए सब लोग ईगो पे आ जाते हैं कि अर्थिंग चीज़ क्या है, वो तो थंब रूल के हिसाब से ही चलता है, कोई समझने के लिए प्रॉपर रेडी नहीं होता है. तो आज मुझे खुशी हुई कि आप सब लोग अर्थिंग को प्रॉपर जानने के लिए आप इधर आए और टाइम निकाला है. तो आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये चीज़ के लिए आप सीरियस हो. वो चीज़ दूसरी चीज़, आज का जो मेरा टॉपिक दो चीज़ पे रहेगा. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अर्थिंग करने से आपकी सिस्टम प्रोटेक्ट नहीं होती है, लेकिन आप किस टाइप का अर्थिंग करते हो वो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. मैं आज कोई केमिकल अर्थिंग या ETP अर्थिंग रिलेटेड बात नहीं करूँगा. आज का मेरा मेन 98% टॉपिक रहेगा टेक्निकल. दूसरी चीज़ रहेगी कि अर्थिंग प्रोडक्ट को कैसे आपको चेक करना है साइट पे, तो वो भी हम लोग पूरा वीडियो के साथ हम लोग पूरा स्टडी करेंगे. और तीसरी चीज़ है, मेरा मेन टॉपिक रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अर्थिंग को कैसे अप्लाई करना है. क्योंकि 1955 से आई स्टैंडर्ड था, IS स्टैंडर्ड था, अभी NEC स्टैंडर्ड भी है, NBC एक्ट आया है गुजरात में. तो उसमें भी जो सिस्टम यूज़ की है, मेंशन किए है, इंडिया में 0.01% भी सिस्टम यूज़ नहीं करते हैं लोग. सबको पता है कि IEC और IEEE है या डिस्ट्रीब्यूशन में IS स्टैंडर्ड है, उसमें कई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेंशन की है, लेकिन हम लोग वो सिस्टम को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं. लेकिन आपकी सिस्टम प्रॉपर नहीं होगी तो प्रोटेक्शन प्रॉपर आपको प्रोटेक्ट करके नहीं देगा. तो वो कौन सी सिस्टम आपको डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई करनी है या आपको यूज़ करनी है, तो उसके रिलेटेड आज बात करेंगे. तो ट्रांसमिशन का भी और सबसेशन का भी टॉपिक लिया है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग आज जो भी एजुकेशन देते हैं लास्ट 1 ईयर में, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ पे फायर होने के चांसेस हर साल टू साल बढ़ रहे हैं. तो उसका मेन रीज़न जो है हम लोगों ने जो स्टडी किया, तो वो एक है नेटवर्क है, अर्थिंग सिस्टम नेटवर्क. तो उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे. ये जो PSR सबने बात की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड इनसाइट, हम लोग एक्चुअली लॉकडाउन के बाद ये एजुकेशन वर्कशॉप सभी इंजीनियर को देते थे. उसमें कोई हम लोग चार्ज नहीं लेते थे. तो ऐसे टोटल 5500 प्लस मेंबर को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया. कंपनी टू कंपनी भी दिया और अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ये ट्रेनिंग हम लोगों ने दिया और वहाँ से हम लोगों को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला. तो इसको हम लोग एक प्लस स्टेज हम लोग लेना चाहते थे. तो हम लोगों ने ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड इंसाइट हम लोगों ने एक ओपन किया. उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उसको हम लोग ट्रेनिंग देंगे. और हम लोगों ने एक चीज़ देखी, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पारुल यूनिवर्सिटी में भी हम लोगों ने एक एजुकेशन वर्कशॉप दिया था अर्थिंग रिलेटेड और लाइटिंग प्रोटेक्शन रिलेटेड. तो जो अभी लास्ट टाइम सर ने जो बात की थी कि जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं और वो क्या स्टडी करते हैं और जब फील्ड में जाते हैं तो वो चीज़ होती ही नहीं है. तो उसको कैसे फील्ड का नॉलेज देना है, तो वो हम लोग इसमें कवर करेंगे. और एज वेल एज इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रीज है तो उसके भी इंजीनियर होते हैं वो जो लग से लेके ट्रांसफॉर्मर तक का पूरा अटेंड करते हैं. तो उसको कैसे हम लोग अर्थिंग और लाइटिंग प्रोटेक्शन का प्रॉपर नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग नॉलेज दे और उसका प्रोटेक्शन सिस्टम वर्क करे, तो ये हम लोग पूरा टॉपिक उसमें कवर करना हम लोग चाहते हैं. आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा,
अर्थिंग स्टैंडर्ड एंड रिसर्च पेपर, 3-phase पावर सिस्टम, रीजन ऑफ अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग सिस्टम. Earthing system is substation, transmission line and distribution line. LV distribution networking, earthing system audits and company introduction लास्ट में रहेगा. ये जो लास्ट 2 पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड LV डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड अर्थिंग ऑडिट, वो एक पॉइंट को हम लोग आप कवर करेंगे. ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी अर्थिंग के स्टैंडर्ड्स है, तो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से अर्थिंग डिजाइनिंग होता है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में. जो अर्थिंग मटेरियल की मैं बात करूँ तो आईसी है 62561 जो लाइटिंग प्रोटेक्शन का है. तो उसमें पार्ट 1 है लाइटिंग एरेस्टर का, पार्ट 2 जो है वो इलेक्ट्रोड का कैसे डायमीटर सिलेक्ट करना है आपको, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, कितना कोटिंग होना चाहिए. पार्ट 7 जो है वो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट, उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तो वो मेंशन है. IEEE आप सब जानते हैं सबसेशन रिलेटेड है. IEEE 81 जो है वो अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग टेस्टिंग के लिए है. NBC एक्ट है और NEC 2023. दूसरे रिसर्च पेपर भी है जो CEA के है, IEEE सिग्रे के है. थ्री फेस पावर सिस्टम, आपको कंप्यूटर लैपटॉप अभी तो हाँ पेन पहला की जो कहीं लगा अरे मैंने मालूम था अभी इनका लैपटॉप लगा दे वो पेन ड्राइव में भी आपका ओके. तो ये 3 फेस पावर सिस्टम है अर्थिंग वर्सेस ग्राउंडिंग वर्सेस बॉन्डिंग में. फाइव मिनट लीजिए कन्वर्ट कर देते हैं. हेलो.
5 मिनट વધારે આપશે બસ સાहब से बात हो गई ये निकाला था इंग्लिश यहाँ से तो मोड़े के कौन दीवी आपते ही आए दीवी आपते आपते काम नहीं करवाना तो एक दो डेफिनेशन रिलेटेड बात करनी थी। एक तो था एक्सपोज एंड एक्सट्रेनियस कंडक्टिव पार्ट। इसका कोई मुझे एक्सप्लेन थोड़ा कर सकता है? एक्सपोज पार्ट ये लाइटिंग प्रोटेक्शन में यूज होता हुआ टर्म्स है और अभी आप देख सकते हो कि जो अर्थिंग एंड बॉन्डिंग तो उसके रिलेटेड एनईसी में और आईईसी 62305 में भी मेंशन किया है। तो एक्सपोज पार्ट्स कौन से होते हैं? एक्सट्रेनियस कंडक्टिव पार्ट। तो उसका थोड़ा मैं बता रहा हूँ। एक्सपोज पार्ट मतलब दिस पार्ट आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड कैन बिकम अ लाइव इफ देयर इज फॉल्ट। मतलब ये जो डेफिनेशन है, जैसे आपकी कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बॉडी जो होती है, जैसे मोटर की बॉडी है, पैनल की बॉडी है, जो नॉर्मल सिस्टम में लाइव नहीं होती, लेकिन कोई भी बार एबनॉर्मल सिस्टम क्रिएट होती है, जैसे फॉल्ट हुआ या मोटर में वायरिंग इंसुलेशन निकल गया, तो वो केस में बॉडी में से फॉल्ट करंट या लीकेज करंट फ्लो होता है, तभी वो एक्टिव होती है। तो उसको बोलते हैं एक्सपोज कंडक्टिव पार्ट। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल मोटर एक्सपोज कंडक्टिव पार्ट, व्हाइल इज मेटल बिकम इज नॉट एक्सपोज कंडक्टिव पार्ट। दूसरा एक्सट्रेनियस कंडक्टिव पार्ट। ये टर्म जो है वो लाइटिंग प्रोटेक्शन जब आप डिजाइनिंग करते हो, तो लाइटिंग प्रोटेक्शन डिजाइनिंग में 99% लोग ओनली फॉर एक्सटर्नल लाइटिंग प्रोटेक्शन डिजाइन करते हैं। इंटरनल लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम कोई डिजाइन नहीं करता है।
तो इंटरनल लाइटिंग प्रोटेक्शन डिजाइनिंग में जैसे एसपीडी है, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस है, वो कंपलसरी है, क्योंकि जब भी लाइटनिंग होता है तो LEMP लाइटनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स के कारण सराउंडिंग में जो भी मेटल पार्ट्स होते हैं उसके कारण जो इंपल्स जनरेट होता है, तो वो जो उसके साथ कनेक्टेड है या ह्यूमन काम कर रहा है तो टच पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल के कारण उसको डैमेज हो सकता है। तो ऐसे कौन से पार्ट्स है, तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल वाटर एंड गैस पाइप, जैसे आपका वाटर एंड गैस पाइप जा रहा है और बाजू में से लाइटिंग प्रोटेक्शन का कंडक्टर है, तो फॉल्ट आया मतलब लाइटिंग हुई तो इंपल्स जनरेट होता है, तो ईएमएफ के कारण उसके कांटेक्ट में आएगा तो वहां पे भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। अदर इंसुलेशन, पाइप वर्किंग, डक्टाइल, सेंट्रल हीटिंग एंड एयर कंडीशन, एक्सपोज मेटालिक स्ट्रक्चर पार्ट द बिल्डिंग एंड नॉन इंसुलेशन फ्लोर एंड वॉल। तो जितने भी इंडस्ट्रीज है वो स्ट्रक्चर पूरा बना के पूरा वो शेड बनाते हैं, तो जितना भी स्ट्रक्चर पार्ट है वो एक्सपोज एक्सट्रेनियस पार्ट्स में गिना जाता है। रीजन ऑफ द अर्थिंग, ग्राउंडिंग एंड बॉन्डिंग, ये तो बेसिक है कि टच पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए जो भी फॉल करंट या लीकेज करंट आता है तो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अर्थिंग या ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग किया जाता है। अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग टर्म्स कई जगह पे एक लिखी है लेकिन कई स्टैंडर्ड में अलग अलग मेंशन की गई है। जैसे आप IEC और IEEE में देखो तो अलग अलग मेंशन है, लेकिन कई लोग अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग को सेम ही कहते हैं। और जहां पे मेंशन की गई है वो कंडीशन में क्या आएगा, अर्थिंग मतलब जो मैं एक्सपोज पार्ट में मिला कि जो भी बॉडी है मोटर की है या पैनल की है तो उसको बोलते हैं अर्थिंग, जिसको लो कंडक्टिव पार्ट के थ्रू अर्थ करते हैं उसको अर्थिंग सिस्टम कहते हैं। और ग्राउंडिंग मतलब जितने भी आपका सिस्टम अर्थ है, जैसे आपका न्यूट्रल हुआ और दूसरा है लाइटिंग प्रोटेक्शन, उसको आप ग्राउंड कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग सिस्टम। लेकिन कई मैटर में UL स्टैंडर्ड में वो सेम दिया है, आप अर्थिंग और ग्राउंडिंग दोनों सेम है। और बॉन्डिंग चीज भी इंपॉर्टेंट है, आपका बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होगा तो इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जब भी फॉल्ट आएगा या लीकेज करंट आएगा तो दो चीज क्रिएट होती है, मैकेनिकल फोर्स और हीटिंग। और वो केस में आपका बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं रहा तो वहां पे डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो बॉन्डिंग मतलब इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग। दूसरा आप NEC स्टैंडर्ड के हिसाब से आप देख सकते हो MET मैन अर्थ टर्मिनल, लाइटिंग प्रोटेक्शन की लैंग्वेज में आप कह सकते हो टेस्ट लिंक है, तो वो आपका बॉन्डिंग भी एकदम कंप्लीट और टाइट होना चाहिए। ये अर्थिंग सबसेशन में है, जो अर्थिंग ग्राउंडिंग जैसे सबसेशन में इक्विपमेंट ग्राउंडिंग है, न्यूट्रल, सर्ज अरेस्टर और CVT के लिए किया जाता है। दूसरा है बॉडी अर्थिंग फॉर डिफरेंट इक्विपमेंट है, और तीसरा है अर्थिंग मैट फॉर सबसेशन। सबसेशन अर्थिंग डिजाइनिंग में कौन कौन से पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, तो जैसे आप देख सकते हो फेंस ग्राउंडिंग, वो भी एक करना जरूरी है। दूसरा है कंट्रोल केबल सीट ग्राउंडिंग, जो अभी अंडरग्राउंड केबलिंग में भी यूज होता है, तो जहाँ पे केबल जॉइनिंग होता है वो केस में भी ये अभी कंट्रोल केबल सीट ग्राउंड भी करना जरूरी है। दूसरा है सर्ज अरेस्टर ग्राउंडिंग, ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियल में कम्युनिकेशन सर्किट, लो वोल्टेज न्यूट्रल वायर, पोर्टेबल इक्विपमेंट, पाइपिंग, एक्सटेंशन ऑफ फेंसिंग, ऑक्सिलरी बिल्डिंग एंड स्विच स्विफ्ट एंड ऑपरेशन हैंडलिंग ग्राउंडिंग, ये सबसेशन के लिए है। ये अर्थिंग इन ट्रांसमिशन लाइन, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और मेरी टाकलगर सर के साथ भी ये डेली मेरी बात होती रहती है। कई जगह पे क्या होता है कि अर्थिंग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं तो अर्थिंग की वैल्यू मिल जाती है, रेजिस्टेंस वैल्यू, लेकिन उसको टावर के साथ कनेक्ट होने के बाद जो TFR की वैल्यू नहीं मिलती है, तो उसमें भी कई पैरामीटर होते हैं। जो लास्ट हमारा एक पैरामीटर आया था कि जो पुराने मशीन से चेक किया जाता था, अर्थिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू हमारा एक केस MP में था, तो सर से मेरी बात हुई थी, तो वहां पे हमारा हार्ड रॉक वैल्यू थी और वैल्यू वहां पे 2500 ओम मीटर के आसपास आ रही थी। और वहां पे हम लोगों ने पूरा ग्रिड और मैश बना के टावर का अर्थिंग किया, तो उनके पुराने अर्थिंग जो थे उसमें वैल्यू आ रही थी 410 ओम विदाउट कनेक्शन TFR। लेकिन बाद में हम लोगों ने अर्थिंग किया तो उसकी वैल्यू आ रही थी कुछ 1.1 ओम, मतलब अर्थिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू तो कम हो गई रेजिस्टेंस वैल्यू, लेकिन उसको जैसे ही हम लोगों ने टावर के साथ कनेक्ट किया तो वैल्यू जो पुरानी जो आ रही थी 60 ओम TFR, वही हमारे साथ कनेक्ट करने के बाद भी 60 ओम आई। तो ये पूरी डिबेट वहां पे वो जो ट्रांसमिशन लाइन के साथ पूरी हुई थी वहां पे, तो बाद में पता चला कि वो लोग जो मशीन के साथ चेक कर रहे थे वो मशीन जो है उसकी प्रोसीजर ही पूरी गलत थी, क्योंकि आप जब लाइटिंग अरेस्टर का जो भी अर्थिंग या सिस्टम चेक करते हैं तो उसमें आपको इंपल्स जनरेट करना होता है, और वो लोग जो मशीन से चेक कर रहे थे वो सिर्फ करंट जनरेट कर रहे थे। तो इंपल्स और करंट में दोनों डिफरेंस होता है। तो अभी नई जो IEEE की गाइडलाइंस आई है 2030 के हिसाब से, तो आप कोई भी TFR चेक करते हो और
नॉर्मली लाइटिंग एरेस्टर भी चेक करते हो तो उसमें भी आपको इम्पल्स जनरेट करके बाद ही चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आपका करंट जब लाइटनिंग होती है तो डीसी करंट जनरेट होता है। अगर डीसी करंट जनरेट होगा तो वहां पे कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस क्रिएट होता है और उसके कारण रिएक्टेंस क्रिएट होता है। तो डीसी के कारण आपको वहां पे इंपल्स जनरेट करके ही लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम आपको चेक करनी जरूरी है, क्योंकि अभी जो भी लाइटिंग सिस्टम चेक होता है अर्थिंग का वैल्यू 10 ओम से नीचे आया तो आपकी लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम कंप्लीट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब भी लाइटनिंग होती है तो एड टर्मिनल के थ्रू डाउन कंडक्टर, इंसुलेटर, अर्थिंग टर्मिनल मतलब आप टेस्ट लीक और उसके बाद अर्थिंग में ग्राउंड होगी और उसके सराउंडिंग में भी कुछ भी आया तो उसको भी चार्ज क्रिएट होता है और चार्ज को भी आपने इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग पे नहीं लाए तो वहाँ पे टच पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल कारण वहाँ पे कोई भी वर्कर काम करता होगा तो वहाँ पे डैमेज होने का चांसेस 100% है। तो मेक श्योर आप जब भी लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम चेक करते हो तो जिस मशीन से चेक करते हो उसको आप एक बार पूछ लीजिए कि भाई ये इंपल्स जनरेट करता है या नॉर्मल करंट जनरेट करता है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन का एक केस अभी हम लोगों ने 3-4 महीने पहले हम लोगों ने ये फेस किया था, उसमें टाकलगर सर ने हमको बहुत हेल्प की थी। तो वहां से हमको पता चला कि ये मशीन में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में एनईसी में भी लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 4 टाइम पर माइल मतलब 1.6 किलोमीटर पर अर्थिंग आपको न्यूट्रल ग्राउंडिंग करना जरूरी है, क्योंकि आपकी जितनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बढ़ती है वहां पे न्यूट्रल का लॉसेस होना चालू हो जाता है। जब आप स्टार कनेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करते हो तो आपका जो स्टार कनेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है आरवाईबी और न्यूट्रल में, तो आपको 1.6 किलोमीटर के बाद आपको उसको न्यूट्रल को अर्थिंग ग्राउंड करना उसमें जरूरी है एज पर एनईसी 2023 के हिसाब से। और अभी एक दूसरा भी क्लोज आया, आई थिंक पीजीवीसीएल ने भी एक कुछ अप्लाई किया है कि जब भी ट्रांसमिशन में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में फॉल्ट आता है तो जेटको के वहां पे सर्किट ब्रेकर या कुछ उसमें उड़ जाता था। तो एक बीच में क्लोज सीए ने भी निकाला था, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने, कि जो ट्रांसमिशन मतलब सबस्टेशन के बाद आफ्टर 10 पोल आपको अर्थिंग करना जरूरी है। तो कोई भी फॉल्ट आता है तो रिटर्न जो सबस्टेशन में जाता है तो फर्स्ट 10 पोल है वहाँ पे इजीली वो फॉल्ट ग्राउंड हो सकता है। लेकिन वो बीच में प्रोजेक्ट चला था लेकिन अभी तक वो प्रोजेक्ट से कुछ पता नहीं है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन में ये फर्स्ट 10 पोल का अर्थिंग करना वो कंपलसरी है। ये एलवी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का है। हाँ, अभी ये मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ अर्थिंग सिस्टम इन एलवी। लो वोल्टेज में अर्थिंग सिस्टम अभी के जितने भी कंसल्टेंट है, ये अभी के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये इनमें से कौन सी सिस्टम यूज कर रहे हैं, मुझे कोई बता सकता है? जैसा आप देख सकते हो कि टीटी सिस्टम, आईटी सिस्टम और टीएन सिस्टम, ये सिस्टम आपने प्रॉपर फॉलो नहीं की तो आप कितने भी आप केमिकल वाला अर्थिंग भी करवा लीजिए, ईएलसी की भी जगह पे आरसीडी भी लगा दीजिए या नए नए प्रोटेक्शन भी लगा दीजिए, तो आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन में इनमें से कौन सी सिस्टम यूज हो सकती है, कोई पार्टिसिपेट कर सकता है? सर आप नहीं, टीएन में नहीं जा रहे। ओके, तो अभी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज कर रहे हैं या प्राइवेट में भी, तो वो लोग कर रहे हैं टीटी सिस्टम, मतलब सोर्स के साथ अर्थिंग और न्यूट्रल को अलग ग्राउंड कर रहे हैं और लोड के साथ अर्थिंग और न्यूट्रल को अलग ग्राउंड कर रहे हैं। लेकिन एज पर एनईसी और आईएस में भी मेंशन किया है, आईएस 2018 में भी आप देख सकते हो, तो उसमें टीएनएस सिस्टम मेंशन की गई है। तो आपका टीटी सिस्टम, आईटी सिस्टम और टीएन सिस्टम क्या है, तो थोड़ा आज हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। टीटी मतलब डायरेक्ट टू अर्थ, एन मतलब आपका हुआ न्यूट्रल, एस मतलब हुआ सेपरेशन, सी मतलब हुआ कॉम्बाइन एंड आई हुआ आइसोलेशन। ये आपका हुआ टीटी सिस्टम। टीटी सिस्टम मतलब आपका जो सोर्स है वहां पे आपने अर्थिंग किया बॉडी और न्यूट्रल, और आपका जो लोड है वहां पे आपने बॉडी और न्यूट्रल वहां पे ग्राउंड किए। अभी जो भी फॉल करंट आएगा वो लोड के साइड, वो सोर्स के साइड वो पूरा रन करेगा। अभी एट दैट कंडीशन में क्या होगा कि जो भी फॉल करंट आएगा तो लोड में जो भी फॉल करंट आता है तो वो आपका जाएगा अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में जाएगा पूरा सोर्स के साइड। अभी वहां पे आएगा आपका सॉइल रेजिस्टिविटी, जहाँ पे सॉइल रेजिस्टिविटी आपकी ज्यादा है तो वहां पे वो प्रॉपर फॉलो नहीं, मतलब उसका पार्ट का इंपीडेंस जो है वो आपका बढ़ जाएगा।
और जितना इम्पीडेंस आपका बढ़ेगा उतना आपका आपने जो लगाया है प्रोटेक्शन सिस्टम में प्रॉपर आपकी काम नहीं करेगी। तो ये कंडीशन टीटी सिस्टम जो ये प्रॉपर उसमें वर्क है। दूसरा है आपका आएगा टीएन सिस्टम। उससे पहले मैं आपको बात करूंगा आईटी। आईटी सिस्टम कहाँ पे यूज होती है? यहाँ पे आई थिंक कंसल्टेंट भी होंगे 4-5 लोग। आईटी सिस्टम नॉर्मली यूज होती है मेडिकल सिस्टम में, जहां पे अर्थिंग की जरूरत नहीं है, पूरी सिस्टम अर्नर होती है। तो आपने देखा होगा कि जहां पे भी ऑपरेशन थिएटर है और जहां पे भी आपका आईसीयू वार्ड है, वहां पे अपने आरसीडी या ईएलसीबी या एमसीबी लगी नहीं होती है। वहां पे इंसुलेशन मॉनिटरिंग डिवाइस आईएमडी यूज होता है, क्योंकि वहां पे पूरी सिस्टम को ग्राउंड नहीं किया जाता है, वो इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग पे वर्क की होती है। तो वहां पे इंसुलेशन आपका जो है वहां पे वो नॉर्मली 100 के आसपास मेंटेन होता है और वो 50 किलो ओम के आसपास जाएगा, बराबर। तो वहां पे वो आपको येलो सिग्नल वहां पे यूज होगा और वो आपको आपका जो लाइनमैन है या वायरमैन है तो वो आपका सिस्टम चेकिंग करना चालू करेगा, क्योंकि आपका ऑपरेशन हो रहा है और वहां पे आपका अर्थिंग ट्रिपिंग हुआ तो वो सेंसिटिव चीज में तो वो पूरी सिस्टम ही खत्म हो जाएगी। तो वहां पे ट्रिपिंग होना जरूरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है। तो वो केस में आईटी सिस्टम ओनली फॉर हॉस्पिटल, पूरी हॉस्पिटल में भी नहीं होता है, ओनली फॉर आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर, वहां पे आईटी सिस्टम यूज होती है। हाँ, वो डीसी रोलिंग मिल में उसमें रोलिंग मिल में जाता होगा। दूसरी जो स्टैंडर्ड में मेंशन की है टीएन सिस्टम है। टीएन में टोटल 3 पार्ट्स है, टीएनएस, टीएनसी एंड टीएनसीएस। एज पर आईएस रूल्स के हिसाब से अपने यहाँ जो टीएनएस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में यूज होती है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो सोर्स के बाद जहाँ पे न्यूट्रल और बॉडी को आपको सॉर्ट करना है, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे ले जाना है, और आपका लोड जो है वहां से आपका जो बॉडी है वो पी, पहले हम लोग बॉडी अर्थिंग कंडक्टर बोलते थे, अभी एज पर एनईसी के हिसाब से आपको प्रोटेक्टिव अर्थ वो आपको ले जाना है सोर्स के साइड। सोर्स साइड मतलब ट्रांसफार्मर, यूपीएस आप या जनरेटर है, तो वहां पे लेके आपको न्यूट्रल के साथ उसको सॉर्ट करना है। तो ये कंडीशन में क्या होगा, कुछ भी फॉल्ट आएगा तो बॉडी है वो डायरेक्ट न्यूट्रल के साथ है, तो वहां पे आपका लूप है वो इजीली आपको कंप्लीट होगा। तो आपका फॉल करंट कैपेसिटी है वहां पे प्रॉपर आपका ट्रिपिंग, वहां पे जो आपने सिस्टम लगाई है वहां पे आपका प्रॉपर ट्रिपिंग होगा और आपका जो इंपीडेंस है वो कम से कम वहां पे मिलेगा। तो टीएनएस सिस्टम जो है ये है। टीएनसी सिस्टम में क्या होता है कि कॉम्बाइन मतलब न्यूट्रल और प्रोटेक्टिव अर्थ उसको एक ही कंडक्टर में वो लोग गिनते हैं। मतलब आपको जो न्यूट्रल है उसके साथ ही वो बॉडी, वो न्यूट्रल को ही बॉडी के साथ उसको मर्ज करके उसको जोड़ता है, उसको बोलते हैं पैन कंडक्टर, प्रोटेक्टिव अर्थ न्यूट्रल कंडक्टर, और वो वहां पे हो जाता है। और टीएनसीएस सिस्टम में तो ये पूरा कॉम्बाइंड सिस्टम है जो न्यूट्रल बॉडी और उसके साथ पैन कंडक्टर को उसमें ले जाता है। तो टीएनएस सिस्टम जो है अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप प्रॉपर यूज करोगे और उसका लूप इंपीडेंस आप प्रॉपर मेंटेन करोगे तो आपकी सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगी। तो ये कंपैरिजन है कि कंपैरिजन ऑफ द ऑल अर्थिंग सिस्टम के टीटी, आईटी, टीएनएस, टीएनसी और टीएनसी। तो अर्थ फुल लो इंपीडेंस, तो टीटी सिस्टम में आपको हाई मिलेगा, जितना लो होगा उतना आपकी प्रोटेक्ट सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगी। आईटी में आपको हाईएस्ट मिलेगा, दूसरा टीएनएस में आपको लो मिलेगा, टीएनसी में लो मिलेगा और टीएनसीएस में लो मिलेगा। सेम टू सेम आरसीडी आपको पता होगा अभी ईएलसीडी की जगह पे आरसीडी कंपलसरी लगाना चालू हो गया है, रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर। तो वहां पे क्या है कि टीटी में आपको कंपलसरी लगाना है, दूसरा आईटी में आपको लगाने की उसमें जरूरत क्योंकि वहां पे अर्थ होता ही नहीं है, तीसरा आपका टीएनएस में ऑप्शनल है कि आपका लूप इंपीडेंस वहां पे एकदम मिनिमम है, तो आप ऑप्शनली आरसीडी लगाने की वो कंडीशन में जरूरत नहीं है। टीएनसी में तो जरूरत ही नहीं है और टीएनसीएस में भी ऑप्शनल है। तो ये पूरा कंपैरिजन है। तो आप सेफ साइड आप देखोगे तो टीएनएस सिस्टम जो है आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि सिर्फ आपको केमिकल अर्थिंग आप करोगे और आपकी सिस्टम आपने प्रोटेक्ट कर रही, एक्चुअली गलत चीज है। आपने ईएलसीबी जब आरसीडी लगा रही और आपने सिस्टम प्रोटेक्ट कर रही, वो भी गलत चीज है। बाई चांस आपने टीएनएस सिस्टम यूज नहीं कर रहे हो लेकिन टीटी भी कर रहे हो
तो आप मेक श्योर हर साल अर्थिंग जैसे चेक करते हो और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को डेटा सबमिट करते हो, तो एज पर एनईसी के हिसाब से, वो भी मैं क्लोज आपको बताता हूँ, जो आप अर्थिंग ऑडिट करते हो वहां पे अर्थ फॉल्ट लूप इंपीडेंस टेस्ट करना भी कंपलसरी है, और आप कौन सी सिस्टम यूज कर रहे हो वो हिसाब से आपका लूप इंपीडेंस उसके अंदर आना चाहिए। जो नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कभी भी फॉल्ट होगा तो आपकी प्रोटेक्शन सिस्टम वर्क नहीं करेगी गारंटी के साथ। तो अभी आपको पता नहीं है कि मैंने जो एमसीबी लगाई है, एलसीबी लगाई है, काम करेगी कि नहीं करेगी। आप कई इंडस्ट्रीज को भी पूछ लीजिए, वो कब पता चलता है, जब फॉल्ट आया और ट्रिपिंग आ गया तो चलो हम लोगों ने प्रॉपर डिजाइन की थी, और ट्रिपिंग नहीं आया तभी पता चला कि पूरी सिस्टम में पूरी बिगड़ी हुई है। जैसे उसमें इंपीडेंस ज्यादा होने का दूसरा रीजन है अंडरग्रेज वायर या अंडरग्रेज केबल भी यूज करते हैं कई लोग, तो वहां पे उसमें आप पता चल जाता है। ये अलग अलग एप्लीकेशन है, टीटी के लिए है, टीएनएस के लिए, जो इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल आईटी बिल्डिंग विद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मर विद फैसिलिटी। तो सर आपका जो क्वेश्चन जो था, तो आप टीएनएस सिस्टम आप प्रॉपर डिजाइनिंग करके आप यूज कर सकते हो स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि आप प्योरली केबल कनेक्ट करके आप न्यूट्रल में कर लोगे तो आपका टीएनएस सिस्टम आ जाएगा, वो भी मैटर गलत है। आपको पर्टिकुलरली एमईटी यूज करना जरूरी है, उसका भी एक डिजाइनिंग पूरा अलग होता है। मल्टी मैन अर्थ टर्मिनल वो आपको यूज करना जरूरी है। पोटेंशियल बॉन्डिंग पहले उसको बोलते थे, बाद में ये एमईटी आया है। तो टीएनसीएस आईटी सिस्टम देखो, हॉस्पिटल आईटी इंस्टॉलेशन फॉर बिल्डिंग और पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग नॉट सुटेबल फॉर डिफरेंट बिल्डिंग विद द सेम सप्लाई। तो हॉस्पिटल में भी आप देखोगे ना, तो एक सप्लाई आता है, तो जब हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर और जो आईसीयू होता है तो उसका एक अलग सप्लाई लेके वहां पे ट्रांसफार्मर यूज होता है, और ट्रांसफार्मर के थ्रू ये आईटी सिस्टम पूरी जनरेट होती है। तो वो एक सिस्टम आईटी में है। दूसरा है, अभी आपको अर्थिंग जब डिजाइन करना है तो कौन कौन से पैरामीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं हर ये एजुकेशन स्लॉट में, जितने भी एजुकेशन स्लॉट मेरे होते हैं, तो वहां पे ये टॉपिक मैं लेता ही हूँ, क्योंकि जब आपको अर्थिंग प्रॉपर डिजाइन करना है तो आपके टेबल पे कौन कौन से पैरामीटर होना कंपलसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी सॉइल, और उसमें भी आपको थंब रूल यूज नहीं करना है कि गुजरात में सूरत पूरा एग्रीकल्चर है तो वहां पे मेरा सॉइल तो अच्छी है, तो वहां पे मैं 2 मीटर 3 मीटर कर दूंगा तो 1 ओम से नीचे आ जाएगी वैल्यू, वो भी एक्चुअली मिथिया पूरी गलत है। दूसरी है सॉइल डेटा आ जाने के बाद आपको अर्थिंग इलेक्ट्रोड सिलेक्ट करना है। कई लोग क्या करते हैं, अर्थिंग इलेक्ट्रोड अभी थंब रूल मार्केट में भी चल रहा है कि बॉडी अर्थिंग है तो 48 एम वाला यूज कर दीजिए, न्यूट्रल है तो 76 एम वाला। कोई आपको पूछेगा नहीं वहां पे सॉइल की कंडीशन क्या है क्या नहीं है, कोई पूछता नहीं। और आधे जो यूजर इंडस्ट्रीज या कंसल्टेंट होते हैं वो हमको बोल देते हैं कि ऐसा अर्थिंग आप बता दीजिए, या केमिकल अर्थिंग का मतलब यही है ना कि भाई आप कहीं के भी सॉइल में मैं लगा दूं तो वैल्यू मेरे को 1 ओम से नीचे मिल जाएगी। तो एक्चुअली ये भी मीठे गलत है। तो मैं सभी कंसल्टेंट उसको भी मैं वही बताता हूँ कि आप अपने फैमिली डॉक्टर को भी पूछ लीजिए कि वैसी दवा दीजिए जो मलेरिया, कमरा और कहीं पे भी एक ही दवा मेरे को चलेगी। आप उसको भी वही डिमांड करिए ना। अभी तक मेडिकल में भी टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है, तो यही सेम टू सेम फिलोसॉफी यहाँ पे यूज होती है कि कोई भी आप टेक्नोलॉजी यूज करिए, केमिकल अर्थिंग, आप मेंटेनेंस फ्री बोलिए, आप लिक्विड है, जेल है, कन्वेंशनल चारकोल नमक, आप पहले जो डिजाइनिंग होती थी वही सेम टू सेम यही अर्थिंग में डिजाइनिंग करना कंपलसरी होता है। दूसरा आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट, सॉइल के डेटा आ जाने के बाद ही पता चलेगा कि मेरे को कितना आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट करनी है और कौन सी टाइप की करनी है। जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, सूरत में हम लोग 3 मीटर का नॉर्मल सॉइल में 2 बैग के साथ भी अर्थिंग करता है तो वैल्यू 1.5 ओम से नीचे मिल जाती है। वही सेम टू सेम सोनगढ़ में टीपीएस जो का है वहां पे हम लोगों ने 2 मीटर में 15 बैग डाली थी, तभी वैल्यू मेरे को 2 ओम से नीचे आई थी। तो वहां पे सॉइल रजिस्ट्री का डेटा लिया हम लोगों ने, उसके बाद पूरा एनालिसिस किया, तभी हमको पता चला कितनी बैग और कौन सी डालनी है। तीसरी पर्पस ऑफ अर्थिंग सिस्टम, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूट्रल, बॉडी और इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि तीनों टीम में अलग अलग है। आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिली एम्पियर में करंट फ्लो होगा, लाइटनिंग एरेस्टर में आपका, मैं जितना मानता हूँ 50 ओम भी वैल्यू होगी ना, तो जब भी आपका इंपल्स आएगा लाइटनिंग होगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मिनिमम आप देखोगे ना तो 200 किलो एम्पियर, मतलब आप 50 किलो एम्पियर से लाइटनिंग चालू होती है, बराबर 0. मिली सेकेंड में वो होती है, माइक्रो सेकेंड में भी आप गिन सकते हो। तो 50 ओम भी होगा तो फ्लो हो जाएगा आराम से। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का अर्थिंग होता है वो मिली एम्पियर में होता है, तो वहां पे आपको रेजिस्टेंस वैल्यू कम से कम लानी कंपलसरी है। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी वाला होता है वो बोलेगा मुझे अर्थिंग की वैल्यू 0.5 चाहिए, लेकिन वोल्टेज चाहिए, ओम चाहिए, वो भी पता नहीं है उसको, लेकिन 0.5 मुझे चाहिए। तो ये है, तो आपकी एप्लीकेशन भी
कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा है टाइप्स ऑफ अर्थिंग सिस्टम, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अर्थिंग सिस्टम में आप यूज करना चाहते हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी सभी इंडस्ट्रीज में आप देखोगे ना तो अर्थिंग के फार्म बने हुए हैं, सबके अलग अलग अर्थिंग कर दीजिए। लिफ्ट के तो 4 डाल दो, लाइटिंग अरेस्टर के एक एलिमेंट 3 डालो तो कितने 4 अर्थिंग, तो 12 अर्थिंग डाल दो। बॉडी अर्थिंग है तो सब पैनल के एक एक अर्थिंग डाल दो, बस अर्थिंग डाल के उसको कनेक्ट कर दो। बिल्डिंग में भी यही चल रहा है, इंडस्ट्रीज में भी यही चल रहा है। तो आपके पास ये कौन सी नेटवर्क यूज कर रहे हो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा अर्थिंग कनेक्शन सिस्टम डेटा, उसमें आप देखो फॉल करंट कैपेसिटी कितनी है, रिक्वायरमेंट रिजल्ट क्या चाहिए, ओमिक और वोल्टेज दोनों आर डिफरेंस, ओमिक वैल्यू अलग है और वोल्टेज सिस्टम अलग है। जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आएगी पिक्चर में, वहां पे मैंने जो देखा है वो 90% लोग ओमिक वैल्यू नहीं मांगते हैं, वो लोग मांगते हैं वोल्टेज चाहिए, न्यूट्रल टू अर्थ वोल्ट, जिसको बोलते हैं स्प्रे वोल्टेज। तो ये आपको मेंटेन करना जरूरी है। दूसरा है जॉइनिंग एंड बॉन्डिंग। अर्थिंग सिस्टम में आप कौन सा कनेक्शन कर रहे हो, अर्थिंग टू अर्थिंग, स्ट्रिप टू स्ट्रिप, केबल टू केबल, या लोड टू जो कनेक्शन है वो कौन सा कनेक्शन से आप कर रहे हो, उसका मटेरियल क्या है, जॉइनिंग जो एडेसिव चीज क्या है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है। वो भी वहां का एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। आपने आर्क वेल्डिंग कर दिया और आपने दहेज एरिया में आप डाल दिया तो 1 साल के बाद कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वही आर्क वेल्डिंग हम सोनगढ़ वगैरह में जाओगे तो आपको 20 साल के बाद वही कंडीशन आपको मिलेगी। तो वो एक कनेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी आप बात करेंगे। अर्थिंग कंडक्टर कौन सा होना चाहिए, इंस्टॉलेशन मेथड, अभी तो केमिकल अर्थिंग की तो बाहर चल रही है, तो इंस्टॉलेशन मेथड आप देखोगे तो आधा घंटे में तो 10 अर्थिंग करके लेबर निकल जाते हैं, और आप स्टार्टिंग में वैल्यू देखोगे 50 ओम से नीचे नहीं मिलती। हमने भी ये चीज फेस किया है, पानी डालते नहीं है, एयर गैप रहता है, और आप अर्थिंग स्टार्टिंग में मेजर करोगे 50 ओम से नीचे नहीं आती है। तो इंस्टॉलेशन मेथड सॉइल के हिसाब से आपको एडॉप्ट करना है, नहीं कि आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से करना है। तीसरी जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस वैल्यू मेजरमेंट, ये एक चीज बहुत कॉमन है, क्योंकि आप जो डो स्पाइक जो स्पाइक डाल के आप मेजरमेंट कर रहे हो, कई जगह पे आपने सूरत में डाइंग मिल देखी होगी, एक ही रूम में ट्रांसफार्मर है, उसके बाजू में जनरेटर है और बाहर सर्किट ब्रेकर लगा है, वहां पे ही पूरे अर्थिंग किए होते हैं। तो वहां पे आप स्पाइक डाल के आप मेजरमेंट करोगे तो वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जहाँ पे आरसीसी पीसीसी है वो चीज है, वहां पे स्पाइक नहीं डाल सकते, तो वो कौन सी एडॉप्ट करनी है मेथड, वो एक चीज है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको अर्थिंग डिजाइन करने में, और ये डेटा आप ऑफिस में जैसे डिजाइनिंग कर रहे हो सेम टू सेम फील्ड पे अप्लाई होना जरूरी है। वो जो नहीं होगा तो आपको बोलेगा भाई अर्थिंग आपका काम नहीं कर रहा है, और मैन्युफैक्चर पे पूरा आ जाएगा। तो सॉइल के बारे में बात करो, 95% अर्थिंग की वैल्यू है, वो साइट के स्पॉट जहां पे अर्थिंग करना है उसकी वैल्यू आपके पास में होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, सूरत की बात कर रहे थे हम लोग, तो सूरत में भी 3 टाइप की सॉइल है। हजीरा में जाओगे तो सिसोर, बीच में आओगे तो गोरा जमीन मिलेगी, और सोनगढ़ वगैरह में जाओगे तो पूरा पत्थर है। वो तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग इधर बैठे हैं तो वहां की भी आपको 3 टाइप की सॉइल मिलेगी। यहाँ पे आप पाइलिंग करोगे तो पूरा पीसीसी आरसीसी मिलेगा, क्योंकि वहां पे पुरान किया होता है। बाहर जाओगे तो बाई चांस गार्डन भी मिलेगा, और उसके बाहर जाओगे तो डामर रोड भी मिलेगा। तो आपको जहां पे भी अर्थिंग करना है तो वहां के आपको सॉइल रजिस्ट्री के डेटा आपके पास होने चाहिए, तभी आप प्रॉपर अर्थिंग डिजाइन कर सकते हो और परफॉर्मेंस आपको मिल सकते हो। परफॉर्मेंस मतलब लाइफ और रेजिस्टेंस वैल्यू। तो अर्थिंग का जो सॉइल रेजिस्टिविटी 2 टाइप से मेजरमेंट होता है, एक तो ERD है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फॉर सॉइल। कई बार कस्टमर से हम लोग बात करते हैं कि सॉइल के डेटा दीजिए, तो वो लोग सिविल के दे देते हैं कि सिविल वाला हमारा चेक कर देता है। अभी लास्ट वीक में ही मैंने एक एजुकेशन स्लॉट किया था, तो वहां पे मेरे को डेटा मिले थे, सिविल वाले ने इलेक्ट्रिकल का डेटा पूरा डिजाइन कर लिया था, मतलब सॉइल रेजिस्टिविटी मेजरमेंट कर दी थी। 220 kV का सबसेशन था, उसमें एक पॉइंट ही उन्होंने मेजर कर दिया, और वो पॉइंट पे पूरा डिजाइनिंग चालू कर दिया, और वहां पे वैल्यू नहीं आती है। तो आपको एक पॉइंट में कितने स्पेस डालना है, जैसे कि आप देख सकते हो कि आपने 4 स्पाइक डालते हैं वेनर मेथड के हिसाब से, जितना स्पाइक के बीच में एंटर है उतना आपको डीप आपकी रेजिस्टिविटी आपको मिलेगी। आप एज पर आईएस देखोगे टोटल 3 टाइप पे आप सॉइल रेजिस्टिविटी मेजर कर सकते हो, 2 पॉइंट मेथड, 3 पॉइंट मेथड और ये 4 पॉइंट मेथड है। उसमें लायबल 4 पॉइंट मेथड आप इजीली उसको चेक कर सकते हो। जितना स्पाइक के बीच में एंटर रहेगा उतना आपको डीप मिलेगा। दूसरा, आपको एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन में आपको सॉइल रेजिस्टिविटी मेजरमेंट करनी है। जैसे आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, तो वहां पे आपको 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर की सॉइल, तो आपका एक डायरेक्शन हुआ। ऐसा आपको 8 डायरेक्शन में मेजरमेंट करना है और उसकी एवरेज वैल्यू लेनी है। और आपको वहां पे एनालिसिस करना है कि वहां पे मेरे को कहां पे सॉइल रेजिस्टिविटी कम है, उसका भी एक रिपोर्ट में दिखाता हूं।
ये हम लोगों ने कैडिला फार्मा ढोलका में पूरा ERT का पूरा किया था। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 3 पॉइंट हम लोगों ने लिए थे। हम लोग को पहले बाहर जॉब वर्क करवाते थे, रिसोर्स करवाते, बाद में हमने खुद का पूरा मशीन लिया। तो आप देख सकते हो कि नॉर्थ से साउथ, तो वहाँ पे वैल्यू 27 ओम मीटर आ रही है, और जैसे आप डायरेक्ट नीचे जाओगे तो 5 हो रही है, तो उसका मतलब है ऊपर RCC PCC है, ऐसा आप समझ सकते हो। वही सेम टू सेम आप वहाँ पे दूसरी जगह पे जाओगे तो आप एवरेज वैल्यू देखो 66 ओम मीटर है दूसरे पॉइंट पे, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे डायरेक्ट 70 हो गए, 0.3, 9 और 22 हो गए। तो सॉइल रेजिस्टिविटी से हमको ये पता चलेगा कि हमको 2 मीटर का या 1 मीटर का अर्थिंग डालना है, और 1 मीटर के बाद सॉइल कैसी है, जैसे आप पोरबंदर में जाओगे तो ऊपर की 2 मीटर की सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर है, 2 मीटर के बाद पूरा पत्थर है। कई बार उल्टा होता है, ऊपर की होती है पत्थर एरिया, जैसे कि इंडस्ट्रीज में RCC PCC किया होता है, और नीचे आपको मिलेगा पूरा रेजिस्टिविटी वाला सॉइल। तो वहां पे ये चीज में आप एनालिसिस कर सकते हो। दूसरी चीज, कई बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे दहेज में आप देखोगे तो कई जगह पे आप आइसोलेशन या आइडियल अर्थिंग भी आप कर सकते हो, कि जहाँ पे रेजिस्टिविटी कम है जो एरिया में, वहां पे आप अर्थिंग करिए और उसको ग्रिड बना के आप नॉर्मल अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर लीजिए। हाँ, सैटेलाइट अर्थिंग। तो ये रेजिस्टिविटी से आप इसको पूरा एनालिसिस कर सकते हो, कौन से डायरेक्टर में रेजिस्टिविटी हमारी कम है, और वहां से आप पूरा ग्रिड की वैल्यू आप कम कर सकते हो। दूसरा है कि आपके पास रिपोर्ट आ गया, तो वो केस में आपको क्या करना है, जैसे कि ये IC का और IEEE का ही पूरा टेबल है, तो इसमें जैसे आपने देखा कि 100 ओम मीटर आ गए, आपके पास डेटा आ गया, तो यही चीज में आपको करना है कि जैसे जैसे वैल्यू ऊपर आएगी, तो वैसे कोरोसिव सॉइल है, मतलब वहां पे पानी का लेवल ज्यादा है तो मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा, मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा तो ऑक्सीडेशन आपको लगेगा। तो वो केस में आपको फोकस करना है अर्थिंग की लाइफ के ऊपर, नहीं कि आपको रेजिस्टेंस वैल्यू के ऊपर। तो आपको इलेक्ट्रोड जो है उसका कोटिंग और डायमीटर के ऊपर आपको फोकस करना है। जैसे जैसे वैल्यू नीचे आएगी तो पूरा उल्टा हो जाएगा, वहां पे कोरोजन नहीं है, तो वहां पे फोकस करना है आपको रेजिस्टेंस वैल्यू के ऊपर, मतलब आपका आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करना है, नहीं कि आपके इलेक्ट्रोड पे। वहां पे आप 10 माइक्रोन का भी हॉट डिप या कॉपर बॉन्डेड यूज करोगे तो आप 25 साल में लाइफ आपको मिलेगी। तो ये रेजिस्टिविटी का पूरा स्लोट है, और ये IEC में भी लिखा हुआ है, जैसे 25 है तो सर्वी कोरोसिव है, तो उससे नीचे आएगा तो आपको समझ लेना है कि भाई कोरोसिव सॉइल है। अभी कोरोसिव में भी 2 टाइप है, तो उसके बाद भी हम लोग एक चेक हम लोग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल इन्वेस्टिगेशन। तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग टोटल इतने पैरामीटर लेते हैं, सॉइल pH, सल्फेट, क्लोराइड, मॉइस्चर कंटेंट, टेंपरेचर एंड मिनरल कंटेंट। सल्फेट है वो हाईली कोरोसिव है, एज पर IEC आप देखने जाओगे तो 2% से ज्यादा सल्फेट नहीं होना चाहिए आपकी सॉइल, जो भी आप सैंपल लेते हो 2% से ज्यादा एवरेज भी आपका नहीं होना चाहिए। तो सल्फेट के कंटेंट में भी केस में आपका कोरोसिव है, और क्लोराइड के केस में भी आपका कोरोसिव है। तो जब आप रेजिस्टिविटी मेजरमेंट करोगे तो वो केस में आपको पता नहीं चलेगा कि जमीन के अंदर क्या चीज है। तो ये जब आप सॉइल के डेटा आप लोगे और लैब में चेक करवाओगे तभी आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि वहां की कंडीशन क्या है। तो ये उसका पूरा आइडियल है कि आइडियल 7 to 9 के बीच में सॉइल रेजिस्टिविटी मतलब pH वैल्यू होनी चाहिए। उसके नीचे और अप है तो आपको फोकस करना है, वहां पे कोरोजन लगना पॉसिबिलिटी है। सल्फेट है या क्लोराइड है वो आपके वो डेटा है, उसके ऊपर आप तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन करना भी एक पार्ट है, उसमें जरूरी है। दूसरा है आपको इलेक्ट्रोड कैसे सिलेक्ट करना है। तो इलेक्ट्रोड सिलेक्ट करने के लिए टोटल पार्ट है कि जैसे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, मटेरियल सिलेक्शन, कोटिंग, डायमीटर कितना होना चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए। तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोड। कई लोग बोलते हैं कि मैंने प्योर कॉपर यूज किया, 100% बोल रहा हूँ प्योर कॉपर होता ही नहीं। आप अपने घर में आप देख लीजिए कि 24 कैरेट गोल्ड होता है, बराबर है, तो वो चीज पॉसिबल है। तो कैरेक्टरिस्टिक और विधि क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। जैसे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड मार्केट में इतने अवेलेबल है। अभी अर्थिंग में जो भी चीज आप यूज करो वो कंडक्टिव होनी चाहिए। टॉलर वर्ल्ड में कौन कौन सी चीज कंडक्टिव है तो उसका हम लोगों ने पूरा एक टेबल बनाया है। उसमें टोटल 5 टाइप में हम लोगों ने उसको डाइवर्ट किया है। एक तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, फ्यूजन टेम्परेचर। जब भी फॉल करंट आएगा तो एक हीट क्रिएट होती है, तो हीट के कारण जो मेटल है वो कितने टेम्परेचर पर फ्यूजन होना चालू हो जाता है, तो उसका कंपैरिजन है। कोरोजन है और कॉस्ट है। जैसा आप देख सकते हो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, जिंक, एसएस, माइल्ड स्टील, कॉपर कोटेड एंड जिंक कोटेड। गोल्ड को निकल गया वो तो पॉसिबिलिटी जरूर भी नहीं है। दूसरा है सिल्वर। कहीं आप देख सकते हो कि जितने भी बड़े बड़े पैनल होती है 1-1, 2-2 करोड़ की, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर में सिल्वर यूज होता है।
हाईली कंडक्टिव के लिए, लेकिन वो कॉस्ट में ही वहां से निकल गया। कॉपर है, अभी भी न्यूट्रल सिस्टम जहां पे है, सिस्टम अर्थिंग है, वहां पे वो लोग अभी कॉपर यूज कर रहे हैं। एल्यूमिनियम का प्रॉब्लम ये है कि वो सॉइल में जाएगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिएट करेगा, तो एल्यूमिनियम एज ए अर्थिंग का आप यूज नहीं कर सकते। तीसरा है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की खासियत आपको लाइफ मिलेगी 100 साल के आसपास मिलेगी, बराबर, लेकिन वहां पे आपको सेल्फ रेजिस्टिविटी उस खुद की वो वहां पे नहीं मिलेगी, तो वहां पे रेजिस्टेंस वैल्यू का प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होता है। जिंक है, जिसको आप बोल सकते हो हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग या कोल्ड डिप जीआई। तो जिंक है एज ए अर्थिंग कोटिंग के ऊपर यूज होता है। तो आप नॉर्मली देख सकते हो कि माइल्ड स्टील है वो आइडियल कंडीशन में है। तो कोटिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं, कोई बता सकते हैं कोटिंग का पार्ट्स? कोरोसिव प्रोटेक्शन, ओके। दूसरा कंडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, यस एग्जैक्टली। तो एक्चुअली इंक्रीज द लाइफ, कंडक्टिविटी इंप्रूवमेंट एंड एनर्जी सेफ्टी। एक्चुअली हम लोगों ने कई जगह पे उसमें देखा है, टेबल में मैं आपको बताता हूँ कि एमएस हम लोग यूज करते हैं माइल्ड स्टील। तो घर में भी आपके जो ग्रिल होती है तो माइल्ड स्टील आप ओपन एयर में होगा तो वो कोरोजन लग जाएगा, क्योंकि कोरोजन है वो नॉन कंडक्टिव है। अभी कोई भी करंट आएगा, फॉल करंट, तो वो सरफेस में से वो फ्लो होने वाला है, जो सर ने बोला हो कि सरफेस नॉन कंडक्टिव रहेगी तो वहां पे आपको रेजिस्टेंस वैल्यू प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो उसके ऊपर हमको कोटिंग लगाना है। घर में तो हम लोग वो डायरेक्ट वो जो ऑयल पेंट है वो लगा देते हैं, लेकिन वो कंडक्टिव पार्ट होना चाहिए। तो कोटिंग तो कई टाइप की है, आप देखो टेफ्लॉन, रबर, पाउडर कोटिंग, बराबर है, लेकिन कंडक्टिव में आप देखोगे तो दो ही है, जिंक कोटिंग है और दूसरा कॉपर कोटिंग है। तो जिंक कोटिंग की बात करूं तो लॉकडाउन में हम लोगों ने एजुकेशन चालू किया था, तो एक मेंबर ने हमको सवाल किया था कि आपका कॉपर कोटिंग का प्लांट है, इसलिए आप कॉपर कोटिंग ही प्रमोट करोगे। तो आपकी बात तो सही है, लेकिन इसको तो थोड़ा हमको चैलेंज करना पड़ेगा, कॉपर कोटिंग ही क्यों यूज करना है, क्योंकि सभी गवर्नमेंट बॉडी है वो लोग कॉपर कोटिंग यूज कर रहे थे। तो ये भी एक क्वेश्चन था कि कॉपर बॉन्डिंग का जिसका प्लांट है उन्होंने ही कुछ अप्रूव करवाया है क्या? तो ये हम लोगों ने पूरा ये ISCS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसमें से हम लोगों ने देखा कि कॉपर की जो कंडक्टिविटी है, मेटल कंडक्टिविटी 17 है, जब आप जिंक की आप देखोगे तो कंडक्टिविटी 8.6 है। सेकेंडली आप देख सकते हो कि फ्यूजन टेम्परेचर 1084 है और जो जिंक का है 419 है। सेम टू सेम है रेजिस्टिविटी, मतलब वो कम से कम होनी चाहिए, तो 10 है कॉपर का, और सेम टू सेम जिंक का है आप देखोगे 20 है। लेकिन कॉपर कोटिंग में बोल रहा हूँ, लेकिन मिनिमम कोटिंग 250 माइक्रोन कंपलसरी है, वो IEC 62305 में मेंशन किया है, 62561 में भी मेंशन किया है। और जिंक की बात करूं तो जिंक में भी दो टाइप है, उसका मैं थोड़ा आपको कि हॉट डिप गैल्वेनाइज एंड कोल्ड डिप गैल्वेनाइज। तो जहां पे भी pH वैल्यू 7 से नीचे है और 9 से अप है, मतलब कोरोसिव सोइल है, तो वहां पे आप हॉट डिप जिंक यूज नहीं कर सकते हो सॉइल के कांटेक्ट में, नहीं कि एयर के कांटेक्ट में। तो ये पूरा एक टेबल है IEC 62305 में मेंशन किया है कि गैल्वेनाइज्ड स्टील में बी कोरोड इन क्ले सॉइल और मॉइस्ट सॉइल। तो जहां पे भी रेजिस्टिविटी आपकी 25 ओमीटर से कम है एज पर IEC 62305 के हिसाब से, तो वहां पे आप हॉट डिप जीआई या कोल्ड डिप जीआई यूज नहीं कर सकते हो। दूसरा है कि गैल्वेनाइज्ड स्टील इन कांटेक्ट विद रेनफोर्स्ड स्टील इन कंक्रीट should not be used in coastal area where they may be salt in ground water। तो जहां भी सॉल्ट एरिया है वहां पे आप हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड यूज नहीं कर सकते हो, वो केस में आप कॉपर बॉन्डेड 250 माइक्रोन कर सकते हो। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड पाइप और रोड के ऊपर 80 माइक्रोन के ऊपर चढ़ता नहीं है, तो उसका कोटिंग कम है, उसके कारण कोरोजन ज्यादा है। क्योंकि आप 80 से अप चढ़ाना चाहोगे तो सरफेस एरिया नहीं मिलता है, तो आप देखोगे तो ऊपर का लेयर आपका निकल जाता है अब तुरंत 1-2 दिन के बाद। तो एक उसकी एक टेक्नोलॉजी वहां पे लिमिट है। अभी ये दूसरा एक मेन पॉइंट है, कोटिंग कैसे चेक करना है। ये भी मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, 99.9% इंजीनियर को पता नहीं होता है कोटिंग कैसे चेक करना होता है। पता होता है लेकिन वो भी मेथड गलत है। और ये मेथड हम लोगों ने R&D जब की थी, कब की थी, जब 2017 में हमारा जेटको में 50 पीस का लॉट रिजेक्ट हुआ था। तो मैं आपको बी फ्रैंक बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग पहले आउटसोर्स करवाते थे जब हमारा खुद का प्लान नहीं था तब, लेकिन जब हम लोगों का जो रिजेक्शन आया और खुद का प्लान हम लोगों ने डाला, तभी ये हम लोगों ने देखा कि भाई कोटिंग एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे होता है। तो ये हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है,
एक्चुअली कोटिंग जो अभी जब लोग मेजरमेंट करते हैं वो क्या करते हैं कि एल्कोन मीटर निकालते हैं और उसका एसएस का बोल्ट जो सरफेस होता है वहाँ पे 0 चेक कर देते हैं और डायरेक्ट चेकिंग कर देते हैं कि वो कि ठीक है 50 माइक्रोन या 250 माइक्रोन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ASTM स्टैंडर्ड भी स्टडी करोगे तो मेंशन किया है कि जिसके ऊपर आपने कोटिंग किया है उसके बेस का आपको कैलिब्रेशन करना है। जैसे आपने पाउडर कोटिंग किया वो MS के ऊपर करना है, तो जो भी मैन्युफैक्चरर उसके पास MS का बेस होगा उसके ऊपर आपको जो एल्कोमीटर के साथ 5 कॉइल आती है 49 माइक्रोन की, 99 माइक्रोन की, 499 माइक्रोन की, 999 की और एक होती है कुछ 1499 की, 1500 माइक्रोन के आसपास, और उसके ऊपर आपको बेस के ऊपर कैलिब्रेट करना है और उसके बाद आपको जहाँ पे कोटिंग है वहाँ पे मेजरमेंट करना है। वीडियो मैंने दिखाया था लेकिन ये कॉपी हुआ है तो इसलिए वीडियो नहीं आया है। उसमें हम लोगों ने ये पूरा R&D किया था जहाँ पे हम लोगों ने SS का जो बेस लिया और माइक्रोन कोटिंग मेजरमेंट किया तो वो केस आ रहा था 235 माइक्रोन बराबर और 280 माइक्रोन, और हम लोगों ने MS का लिया तो वहाँ पे केस आ रहा 240 माइक्रोन, तो 40 से 50 माइक्रोन का वहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो ये केस आपको सभी जगह पे अप्लाई होगा जहाँ पे आप हॉट डिप्स किया की स्ट्रिप लेते हो, कॉपर कोटिंग की आप अर्थिंग का इलेक्ट्रोड लेते हो, या आप पाउडर कोटिंग मेजरमेंट करवाते हो, पाउडर कोटिंग यूज करते हो, टेफ्लॉन कोटिंग, क्योंकि वो फेरारे और नॉन फेरारे दोनों में यही टेक्नोलॉजी उसमें मेजरमेंट होती है, क्योंकि एल्कोन मेटल डोज चेक होता है। रबर कोटिंग मतलब नॉन फेरारे भी कर रहा है और फेरारे भी कर रहा है। ओके, अभी डायमीटर और लेंथ कैसे सिलेक्ट करनी है, ये एक हम लोगों ने चीज देखी है कि जहाँ पे 1 मीटर का अर्थिंग लोग करते हैं वहाँ पे 5 ओम आई, तो 2 मीटर में जैसे 2 ओम आई, 3 मीटर में 1 ओम आई, तो कई ज्ञानी लोग होते हैं कि चलो 10 मीटर का कर देते हैं तो वहाँ पे वैल्यू मेरे को 0.5 ओम वैल्यू आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर पर अर्थपीट की बात कर रहा हूँ, नहीं कि मैं सबसेशन में जहाँ पे मैस और ग्रिड बना है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे 20-20 मीटर तक भी जाते हैं वाटर टेबल को टच करने के लिए। लेकिन जहाँ पे इंडस्ट्रीज और रेसिडेंस में अर्थिंग किए हैं वो वाटर टेबल को टच नहीं होता है, क्योंकि वो ग्रिड और मैस हेवी बनाते नहीं है वो केस में। तो एज पर IS क्या कर रहा है, ये IS का ही पूरा सेक्शन नंबर 9.2.2 में ये पूरा ग्राफ दिया है कि जहाँ पे भी आपको 3 मीटर से ज्यादा आप अर्थिंग करोगे, लेंथ का अर्थिंग करोगे, तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड का खुद का सेल्फ रजिस्टिविटी उसमें क्लेम होगा, तो जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो वहाँ पे बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, मतलब वो ड्रास्टिकली वहाँ पे घटेगी नहीं। तो 3 मीटर से ज्यादा आपको रेजिस्टेंस जो लेंथ है वो आगे जाने की जरूरत नहीं है। वो केस में आपको मल्टीपल अर्थिंग करना है, वहाँ पे भी वैल्यू नहीं आ रही है तो आपको आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट करनी है, ग्रिड अर्थिंग करना है, मैश बनाना है, मैश में भी नहीं आ रही तो ऑक्सिलरी मैश बनानी है, उसमें भी वैल्यू नहीं आ रही है तो मैश और ग्रिड को आप आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट तो मैं कोई केमिकल चार्कोल नंबर की बात नहीं कर, ओनली फॉर आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट, तो कोई भी टाइप के कर सकते हो। उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए वो मैं आगे के टॉपिक में कवर करता हूँ। ये लेंथ है, डायामीटर है, तो डायामीटर बढ़ने से आपका रेजिस्टेंस वैल्यू कम नहीं होगा, वो एक लिमिट के आसपास है। जैसे कि हम लोगों ने 50 mm का पाइप यूज किया है, कई लोग बोलेंगे मैं 100 mm का यूज करूँ तो डायमीटर कम मतलब रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाएगी, तो मतलब नहीं। उसका रीजन है कि जब भी फॉल करंट आएगा तो वो फ्लो होगा जो इलेक्ट्रोड है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया में से, नहीं कि पूरा सरफेस एरिया में। सरफेस एरिया कहाँ पे मेंटेन हो, जैसे आपने ग्रिड और मैश बनाई है, जब हैवी फॉल्ट आता है तो उसका जो करंट डेप्रिशिएट करवा और हीट उसको डेप्रिशिएट करने के लिए वो ग्रिड और मैश बनाते हैं। लेकिन पर अर्थपीट में आपको क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। जैसे पाइप और इलेक्ट्रोड सॉलिड रोड यूज होता है, पाइप की मैं बात करूं तो पाइप में क्रॉस सेक्शन एरिया वो आपका थिकनेस हुई। इलेक्ट्रोड की बात करूं तो जो सॉलिड रोड का फुल आपका सॉलिड रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस टाइप का अर्थिंग कर रहे हो, फॉल करंट, हैवी फॉल करंट ग्राउंड करने के लिए कर रहे हो या रेजिस्टेंस वैल्यू मेंटेन करने के लिए कर रहे हो। हैवी फॉल करंट ग्राउंड करने के लिए कर रहे हो तो आपको फोकस करना है क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, और अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू फोकस करना है तो आपको करना है डेप्थ के ऊपर। वो दोनों की एप्लीकेशन अलग है। हैवी फॉल्ट में होता है आपका न्यूट्रल और लाइटिंग का जो अर्थिंग होता है वो वहां पे आपको क्रॉस सेक्शन एरिया आपके ऑन पेपर होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थिंग में रेजिस्टेंस वैल्यू कम से कम चाहिए, तो वहां पे आपको लेंथ पे आपको फोकस करना है। तो इसलिए हम लोगों ने ये पूरा टॉपिक एक पे पूरा लिया है। जॉइनिंग एंड बॉन्डिंग में 99% लोग ये आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं। एज पर स्टैंडर्ड आप आर्क वेल्डिंग यूज नहीं कर सकते हो, करना है तो उसके बाद की भी प्रोसीजर है कि ब्यूटेनियम आपको पेंट लगाना है या कलर लगाना है, और हर साल आपको उसको मेंटेन करना होता है वो केस में। तो आर्क वेल्डिंग में प्रॉब्लम क्या है, दो मेटल
होती है, तीसरी मेटल ऐड होती है, ओपन एयर में होता है तो ऑक्सीडेशन लगता है, स्लज क्रिएट होता है। तो जब भी फॉल करंट आएगा तो मैकेनिकल फोर्स क्रिएट होती है, तो वहाँ पे वो सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलती है। ये फेज हम लोगों ने किया था जब 2013 में हम लोगों ने कंपनी चालू की थी, तो 2015 और 16 में हम लोगों ने एडा में अर्थिंग का शॉर्ट सर्किट के लिए भेजा था एक सैंपल। तो वहाँ पे हम लोगों ने आर्क वेल्डिंग किया था और नॉर्मल आर्क वेल्डिंग किया था, और वहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने 35 किलो एम्पियर का बोला था, लेकिन 15 किलो एम्पियर में पूरा वेल्डिंग वहाँ पे ब्लास्ट हो गया। तो वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने बोला था कि एक आर्क वेल्डिंग का ये प्रॉब्लम सभी अर्थिंग में ये होता ही है। तो ये पूरा एनालिसिस हम लोगों ने किया। तो आर्क वेल्डिंग है नहीं, लेकिन उसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा एक्सोथर्मिक वेल्डिंग, ये कहाँ पे देखा है आपने? रेलवे में जो दो पतरी को ज्वाइंट करते हैं, वो बड़ा वहाँ पे मोल्डिंग होता है, वहाँ पे एक्सोथर्मिक किया जाता है। इसमें एक फायदा ये है कि ये ओपन एयर में होता नहीं है, मतलब ये मोल्ड है, उसके अंदर आपको दो मेटल को डाल देना है, ओपन एयर में से उसको आइसोलेट करना है, मतलब एक ग्रेफाइट का पूरा मोल्ड होता है, और ऊपर से जो भी मेटल है वो मेटल का पाउडर ऐड करना है। जैसे आपने कॉपर कोटिंग का करा तो कॉपर कोटिंग का मतलब कॉपर का पाउडर आएगा, जिंक का है तो जिंक का पाउडर आएगा, और प्योर एमएस का है तो एमएस का पूरा पाउडर आएगा, और वहाँ पे थोड़ा ब्लास्ट मटेरियल डालना है, और उसको आप ब्लास्ट करोगे तो दो मेटल पूरी हीट के कारण वो पूरी पिघल जाएगी और वहाँ पे वो बॉन्डिंग होगी। मतलब तीसरी मेटल ऐड नहीं होती है, तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कंपेयर टू आर्क वेल्डिंग आपको ये ज्यादा मिलेगी। हाँ, कॉस्टिंग इसका ज्यादा है, लेकिन जहाँ पे लाइफ का इश्यू है वहाँ पे आप ये कर सकते हो। और जहाँ पे सेंसिटिव अर्थिंग है, तो मैं कई अपने यूजर को बोल रहा हूँ कि भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सभी आर्क वेल्डिंग की जगह पे एक्सोथर्मिक कर दीजिए, लेकिन आपका जहाँ पे न्यूट्रल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो 100 जहाँ पे वेल्डिंग होते हैं वहाँ पे 10 वेल्डिंग ये कर दीजिए, तो आपको बार बार ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन एज पर RDSO, RVNL, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पे जो ग्रिड बनाते हैं बराबर, वहाँ पे एक्सोथर्मिक वेल्डिंग कंपलसरी है, लाइटिंग प्रोटेक्शन में भी एक्सोथर्मिक वेल्डिंग कंपलसरी है। जैसे हम लोगों ने ये एक 2 RSS किए हैं अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो वाले जो है कोबा में, तो 2 RSS पूरा हम लोगों ने पूरा डिजाइनिंग किया और वहाँ पे एक्सोथर्मिक किया। टोटल कुछ 650 एक सबस्टेशन में पूरे शॉट थे, वो पूरा ग्रिड का आ गया, टी कनेक्शन, क्रॉस कनेक्शन, पूरा राइजर वहाँ से निकलता है वो, और उसके कनेक्शन के साथ। तो वहाँ पे 25 ईयर प्लस की हम लोगों ने वहाँ पे वो लाइफ की वारंटी उसमें दी, और वो स्टैंडर्ड में ही मेंशन किया हुआ है वो केस। इसका भी एक वीडियो है, कॉपी किया है। दूसरा है जहाँ पे वेल्डिंग है वहाँ पे जॉइंट एंड बोल्ट है, उसकी भी एक कंडीशन है। जहाँ पे वेट एरिया है तो कौन सा मटेरियल यूज करना है, ड्राई एरिया है तो कौन सा मटेरियल यूज करना है। तो जहाँ पे वेट एरिया है, वेट लोकेशन है, वहाँ पे कॉपर, ब्रॉन्ज एंड ब्रास द बोल्ट मस्ट, तो वहाँ पे यूज कर सकते हो SS। और जहाँ पे ड्राई एरिया है वहाँ पे कॉपर एलॉय, मेलाबेन, एल्यूमिनियम एंड डाई कास्ट यूज कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे ये जॉइनिंग है वहाँ पे आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं मिलेगी, तो वो केस में आपको ध्यान रखना है। लेकिन जहाँ पे ऐसे आपको मटेरियल यूज करना है तो एनवायरमेंट आप एक बार देख लीजिए, इसके लिए कोई टेस्टिंग नहीं होता है। जैसे आप दहेज में जाओगे तो पूरा सीसोर एरिया है, या आप कंडला मुद्रा में जाओगे, जैसे राजकोट में जाओगे तो पूरा आपका ड्राई एरिया है, तो वो केस से आप उसको पता लगा सकते हो। अभी ये पूरा कंपैरिजन है एक्सोथर्मिक वेल्डिंग, नट बोल्ट एंड आर्क वेल्डिंग में 100% कांस्टेंट सरफेस एरिया। हाँ, एक आर्क वेल्डिंग में एक प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे आप ये दो कनेक्शन करोगे तो वेल्डिंग जो होता है वो सराउंडिंग में ही होता है, बीच में आपको प्रॉपर वेल्डिंग नहीं होता, सरफेस एरिया नहीं मिलता है। तो जहाँ पे रफ पट्टी होती है, जैसे आप पट्टी को कनेक्शन कर रहे हो, रफ पट्टी होती है जो स्लज से पूरी बनती है, तो वहाँ पे आपको सरफेस एरिया प्रॉपर नहीं मिलता है, तो स्पार्किंग होने का चांसेस है। जैसे आप देखोगे L&T कंपनी है, वो जो भी वेल्डिंग करवाते हैं तो वहाँ पे एक्सरे वो लोग निकालते हैं, क्रैकिंग है कि नहीं अंदर। लेकिन अर्थिंग में तो वो पॉसिबल नहीं, लेकिन ये जजमेंट लगा सकते हैं, वहाँ पे वो चांसेस है। लेकिन एक्सोथर्मिक में ये नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा लिक्विड होके टेम्परेचर डाउन प्लस होके पूरा वो ये हो जाता है। टेम्परेचर बीइंग कैपेसिटी मोर देन टू 1083 और 250 है, और टेम्परेचर बीइंग 350, ये फर्क आपका आएगा। कनेक्शन डज नॉट लूज विथिन टाइम, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कनेक्शन लूज होने का चांसेस है। आप बाई चांस उसके ऊपर आप बिटवीन टैप भी नहीं लगाओगे तो उसमें भी कुछ होने वाला नहीं, ओके। हाँ, लेकिन इसमें आपको फिनिशिंग नहीं मिलेगा एक्सोथर्मिक में। लेकिन करंट कहाँ पे फिनिशिंग देख के जाने वाला है, कि जब फिनिशिंग नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा। वही सेंटेंस ऑफर लॉन्ग लाइफ एंड जॉइंट विल बी नॉट डिटेरेट विद एज। लेकिन प्राइसिंग में आपको ये थोड़ा एक्सोथर्मिक ज्यादा पड़ेगा। एक्चुअली एज पर जेटको का ड्राइंग भी आप देखोगे तो उसमें भी मेंशन किया हुआ है आइदर एक्सोथर्मिक वेल्डिंग या आइदर विदाउट वेल्डिंग। लेकिन सभी जगह पे 100% आप देखोगे तो आर्क वेल्डिंग करके ही
कॉपर कोटिंग होके ये पूरा मटेरियल जाने देते हैं। तो फिजिकल पता ही उसमें वो चलता नहीं है। व्हाट इज आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट? आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? तो रिड्यूस द सॉइल रेजिस्टिविटी। जहाँ पे नेचुरली सॉइल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है उसको आपको आर्टिफिशियली रेजिस्टिविटी आपको कम करनी पड़ती है। उसके लिए जो भी मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल को आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे सॉइल रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसके कारण हम लोग प्रोजेक्ट शिफ्ट कर गए, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट तो करनी जरूरी है। तो एक आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं कि रिड्यूस द सॉइल रेजिस्टिविटी, इफ प्रोवाइड मॉइस्चर ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड इवन द ड्राई एनवायरनमेंट, मॉइस्चर कांस्टेंट मिलता है, हेल्प टू रिड्यूस अर्थक्वेक रेजिस्टेंस वैल्यू एंड फॉल करंट। जो सरफेस एरिया है वो आपका बढ़ेगा। एज पर आईएस के हिसाब से आप देखोगे तो इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग 2 मीटर का एरिया वहां पे आपको आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट करनी जरूरी है। दूसरा, समर की सीजन में बाई चांस रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाता है तो आईएस कह रहा है कि आपको ऐसा नहीं कि पानी का नल चालू रख देना, जैसे आप में बाग में पानी जैसे डालते हो तो इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग 2 मीटर का एरिया में आपको पानी डालना है। क्योंकि आप देखोगे कि समर की सीजन में ऐसा नहीं है कि 3 मीटर की पूरी सॉइल है वो ड्राई हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक का चैम्बर आप समर की सीजन में भी खोलोगे ना, ओपन करोगे ना, तो वहां पे आपको मॉइस्चर मिलता है। तो एवरेजली आधा या 1 मीटर तक आपकी सॉइल है वो ड्राई होती है, उसके नीचे तो मॉइस्चर कंटेंट रहता ही है। तो जितना पानी भी आप ज्यादा लोगे, 30% से भी ज्यादा पानी ज्यादा रहा। कई बार हमारे पास केस आते हैं, जैसे हम लोगों ने जाइडस कैडिला ये बगोदरा में जो है ना पूरी लैब पर, वहाँ पे 2 मीटर में पूरा पानी आ जाता है। तो पूरे पानी में मेरा अर्थिंग है ना, तभी भी वैल्यू 10 ओम से नीचे नहीं है। तो एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से ज्यादा पानी भी रहेगा तो रेजिस्टिविटी वो आपकी कम नहीं होने वाली है। तो आपको ऊपर से सिर्फ पानी डालना है तो रेजिस्टिविटी कम होने का चांसेस वो केस में है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट, आप जो भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट परचेस करते हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? तो एक है लो रेजिस्टिविटी मटेरियल होना चाहिए जिसकी सेल्फ रेजिस्टिविटी 0.12 ओम मीटर से कम हो। एक ये चीज, दोनों डिफरेंस है। सेल्फ रेजिस्टिविटी 0.12 ओम मीटर से कम हुई तो उसका मतलब ये नहीं कि अर्थिंग पूरी पीट की वैल्यू है वो आपको कम मिलेगी, क्योंकि अर्थ पीट जो बनता है वो टोटल 3-4 पार्ट से बनता है। एक इलेक्ट्रोड, सॉइल, आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट और अर्थिंग लीड आपका हुआ। तो ये जो भी आप पार्ट्स यूज कर रहे हो तो उसकी खुद की रेजिस्टिविटी कम से कम होनी चाहिए, तो ही आपका अर्थ पीट का रेजिस्टेंस वैल्यू आपको कम से कम मिलेगा। तो ये सब रेजिस्टिविटी सभी स्टैंडर्ड में मेंशन की है। आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट की क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रोड का मैंने बोला 17 है, आईएससीएस में मेंशन किया हुआ है। आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट 0.12 ओम मीटर बोला। सॉइल का है आइडियली हम लोग 25 से 15 ओम मीटर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एक ये है। दूसरा है कि एंटी कोरोसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मेटल का पूरा पाउडर बना के डाल दिया, क्योंकि वही खुद कोरोसिव है तो इलेक्ट्रोड को डायरेक्ट कोरोसिव लगाने देगा। तीसरा है एनवायरमेंट फ्री होना चाहिए। अभी वो केमिकल अर्थिंग कर रहे हैं तो केमिकल, लिक्विड, पाउडर और सॉलिड फॉर्म में आप सॉइल में नहीं डाल सकते हो एज पर जीपीसी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से। तो आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो वो आरओएचएस कंप्लायंस के हिसाब से होना चाहिए। तीसरा है आपका लीस्ट सॉल्युबल होना चाहिए। हम लोग चारकोल नमक की जगह पर अभी नए टाइप के अर्थिंग में क्यों आए? क्योंकि हम लोग जो सॉल्ट डालते थे वो कंडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, और लकड़ी या कोलसा डालते थे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए। पर पानी और नमक मिलते हैं तो वो पूरा नमक पानी में घुल जाता है, तो समर की सीजन बार बार आपको पानी डालना पड़ता है। तीसरा है NaCl+H2O, पानी और नमक मिक्स होता है तो कोरोजन लेयर क्लियर होता है। तो उसके अगर आपने देखा वायर मैंने 5 साल के बाद बोला सर कुछ बचा ही नहीं है, तो उसका रीजन ये है। तो आप जो भी मटेरियल डाल रहे हैं वो लीचेबल नहीं होना चाहिए, पानी में सॉइल के साथ वो मिक्स होना चाहिए, तो वो एक टेस्टिंग है। तीसरा है हाईली कंडक्टिव होना चाहिए। ये एक चीज बड़ी है। अभी मार्केट में 99% लोग बेंटोनाइट यूज कर रहे हैं। राजस्थान, MP और महाराष्ट्र तीनों 3 जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वो सभी कंपनी वो लोग अभी बेंटोनाइट प्योरली यूज कर रहे हैं। और मैं उनको बोलता हूँ कि एज पर IEEE स्टैंडर्ड आप बेंटोनाइट यूज नहीं कर सकते हो। तो बोले कहाँ पे लिखा? जब मैं बताता हूँ तभी उनको पूरा कंफ्यूजन होता है। बेंटोनाइट का ऑनलाइन आप देख लीजिए, उसकी खासियत है जब तक पानी रहेगा तब कंडक्टिविटी रहेगी, पानी नहीं रहेगा तो वो वन टाइप इंसुलेटर है। वो कहाँ पे यूज होता है? नॉर्मली सिविल कंस्ट्रक्शन में। जब आप ब्रिज का पाइलिंग करते हो तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे डीप में तो मिट्टी जो है वो कोलैप्स हो जाती है, तो कोलैप्स नहीं होते तो उसके सराउंडिंग में वो लोग बेंटोनाइट डाल देते हैं। तीसरा होता है फाउंड्री कास्टिंग। कास्टिंग की जो फाउंड्री होती है तो वहाँ पे क्या होता है, पोरोसिटी नहीं रह जाती है, तो वो लोग मिट्टी के साथ ये बेंटोनाइट यूज करते हैं, तो वो जो मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर देता है। लेकिन IEEE में मेंशन किया हुआ है कि जब आप बेंटोनाइट ड्राई हो जाता है तो वो कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस क्रिएट होती है और इलेक्ट्रोड को वो कोरोड मतलब कोरोजन क्रिएट होता है।
तो वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस वैल्यू वहाँ पे आपको बढ़ती हुई मिलेगी। स्टार्टिंग में पानी आप डालोगे बेंटोनेट में, जितने भी पानी डालो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। आप 5 किलो बेंटोनेट में 50 लीटर भी पानी डाल दोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा बेंटोनेट अभी एब्जॉर्ब कर रहा है वो केस में। लेकिन 1-2 महीने के बाद वो पानी नहीं रहेगा तो वो कंडीशन में आपकी रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ती है। तो आप जो भी मटेरियल यूज करो तो ड्राई कंडीशन में भी कंडक्टिव होना चाहिए। ये इंस्टॉलेशन मेथड है। कई लोग करते हैं पाइलिंग किया, मिट्टी निकाली, इलेक्ट्रोड डाला और पहले पूरी बैग डाल देते हैं और उसके बाद मिट्टी डाल देते हैं, वो भी मेथड गलत है। बैग मिट्टी और डालते वो भी मेथड गलत है। एक्चुअल मेथड क्या है, जो भी मिट्टी निकलती है उसमें से नॉन कंडक्टिव पार्ट निकाल लेने होते हैं। जैसे पत्थर प्लास्टिक है तो 50% वो खाली हो जाएगा और उसके साथ पूरा ये आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मिक्स करनी है। कैसे करनी है, जैसे कड़िया जैसे कपची और रेती मिक्स कर रहा है उस टाइप में करना है। कई लोग क्या करते हैं, ड्रम दे देते हैं, उसमें पूरा पानी और लिक्विड डाल देते हैं, पूरा लिक्विड स्लरी बना देते हैं। एक्चुअली स्लरी आपको बनाना नहीं है, आपको बनाना एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे शिखंड टाइप बनाना है तो सेमी सॉलिड पूरा आपको बनाना है। और आपको 2 लेबर चाहिए, एक इलेक्ट्रोड रखेगा, एक जो मिट्टी वाला जो मिक्स है वो उसमें सराउंडिंग इलेक्ट्रोड में डालेगा और एक जो लेबर होगा वो थोड़ा पानी डालने के बाद एक लकड़ी का डंडा रखेगा। जैसा आप पिलर फिलअप करते हो तो वाइब्रेटर होता है, क्यों? क्योंकि जो एयर गैप नहीं रहेगा, जो एयर गैप आप निकालोगे नहीं तो 2-3 दिन के बाद वो आपका खड्डा है वो आधा हो जाएगा। नहीं तो आपको रेजिस्टेंस वैल्यू 50 ओम से चालू होगी, 50, 100, 150 के आसपास तो चालू होगी। तो ये इंस्टॉलेशन में ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है। ये कंपाउंड वीडियो होती है। दूसरा आप देखोगे 35% जो भी 30% इंडस्ट्रीज जो है वो अभी है कोरोजन एरिया या सीसोर एरिया में बसी हुई है। तो वहाँ का एक प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है वो है वहाँ पे अर्थिंग की लाइफ आपको नहीं मिलती है। 1 साल 2 साल के बाद पूरी वो कोरोड हो जाती है। तो वो केस में हम लोगों ने अडानी में हम लोगों ने एक फेस किया था। अभी मुद्रा और कंडला में आप कोई भी अर्थिंग सेल करने जाओगे तो कोई आपको गेट के अंदर भी नहीं घुसने देगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा अर्थिंग का मार्केट बिगाड़ दिया है सबने। पूरा पाइप दे दे के 6-6 महीने 1-1 साल में पूरा करोड़ हो जाता है। तो वो केस में हमारे पास 2016 में वो केस आया था। हम लोगों ने अर्थिंग किए थे रिटेलर के थ्रू और पूरा अर्थिंग 7 महीने में करोड़ हो गया था। तो बाद में हम लोगों ने एनालिसिस किया तो IEEE स्टैंडर्ड में मेंशन किया है कि कंक्रीट बेस हाइड्रोस्कोपिक जहाँ पे सॉइल है वहाँ पे कंक्रीट बेस आपको मटेरियल यूज करके और उसकी सेल्फ रेजिस्टिविटी 30 से 90 ओम मीटर होनी चाहिए, वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया था वर्सेटाइल करके, ये सैंपल भी मैं लाया हूँ, बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कि जहाँ पे भी सीसोर एरिया है और जहाँ पे कोरोजन सॉइल है वहाँ पे ये प्रमोट करते हैं हम लोग। और वहाँ पे हम लोग 25 ईयर की लाइफ की वारंटी प्रोवाइड करते हैं अर्थिंग में। और ये पूरा कंडक्टिव है। और दूसरा है हमारे पास ये अर्थिंग मैश है, जहाँ पे आप 1 मीटर के नीचे पानी का लेवल आ जाता है। जैसा बारिश में आप देखोगे तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो वो केस में आप मैश भी यूज कर सकते हो। 0.5 mm डेप्थ में डालना है, ये भी वर्सेटाइल मैश है। इसमें एक वीडियो हम लोगों ने बताया था कि इसका भी आपको कोई लैब में चेक नहीं करवाना है, ये आप उसको सिर्फ सीरीज भी करोगे ना, वो सीरीज भी कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, वो 100 वोल्ट बल्ब वाली भी नहीं, मतलब जो 100 रुपये वाली इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी वहां पे कोई भी पॉइंट 2 पॉइंट पे आप रखोगे ऊपर नीचे तो आपको कंडक्टिविटी आपको फुल मिलेगी। ये पूरा सैंपल है। ये अर्थिंग ऑडिट का है, वो सेक्शन थोड़ा बढ़ा लिया है। जैसे मैंने बोला था सही है, रेगुलेशन के हिसाब से हर साल जो है वो इलेक्ट्रिकल डेट्स वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका रीजन है तो अर्थिंग ऑडिट करने के कितने कितने स्टैंडर्ड है, तो ये पूरे स्टैंडर्ड मेंशन है। तो अर्थिंग लेते हैं ऑडिट करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, जो आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इंडस्ट्रीज के लिए, सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए। आपका प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगा तो सिस्टम परफॉर्मेंस माल फंक्शनिंग होगी, या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने देखा हो ऑक्सीलेशन क्रिएट होगा या कार उड़ जाता है 2-3 साल के बाद। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आप देखोगे ना तो 90% आपका अर्थिंग प्रॉपर होगा ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक ये है कॉस्ट सेविंग, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो गया तो आपको कॉस्ट का भी वो प्रॉब्लम होगा। तो आपको अर्थिंग ऑडिट में कौन कौन से पॉइंट लेने हैं। 99% लोग, मैं सभी लेक्चर में ये बोलता हूँ कि एक ही चीज करते हैं, अर्थिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर करते हैं तो आपका अर्थिंग ऑडिट पूरा हो गया। लेकिन अर्थिंग ऑडिट में आपको अर्थिंग सिस्टम, लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये सब चीज आपको उसमें मेजरमेंट करनी होती है, तभी आपका प्रॉपर अर्थिंग होता है। तो वो एक देते हैं जैसे विजुअल इंस्पेक्शन, अर्थपिट चैम्बर, अर्थपिट बस बार, जैसे इक्विक पोटेंशियल बॉन्डिंग बस बार भी कहते हैं। दूसरा आप MET भी कह सकते हो, लाइटिंग अरेस्टर में आप टेस्टिंग भी बोल सकते हो।
तीसरा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस वैल्यू, चौथा है कंटिन्यूटी एंड बॉन्डिंग टेस्टिंग, ये एक चीज बड़ी चीज है, मैं भी वो कवर करता हूँ। ग्रिड इंटीग्रिटी टेस्ट जो सब सेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, नए सब सेशन और पुराने सब सेशन के लिए। राइजर इंटीग्रिटी टेस्ट जो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि एसएसएनएल में हमको एक फेज हुआ था, ऊपर से राइजर अच्छे दिखते थे, निकाला तो पूरा हाथ में आ गया। तीसरा है सॉइल रेजिस्टिविटी, ये भी ऑडिट का पार्ट्स है, क्योंकि सॉइल रेजिस्टिविटी आपकी प्लस माइनस होती है तो आपका सब सेशन में टच पोटेंशियल स्टेप पोटेंशियल भी वेरी होता है, तो वो भी आपको चेक करना है। तीसरा है स्टेप एंड टच पोटेंशियल, चौथा है लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम एंड सर्च प्रोटेक्शन, दूसरा अर्थ फॉल्ट लूप इंपीडेंस टेस्ट, ये भी एज पर एनईसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को हर साल जो रिपोर्ट सबमिट करते हो तो उसमें लूप इंपीडेंस का भी रिपोर्ट सबमिट करना कंपलसरी है। तो ये सभी इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स में हम लोग जाते हैं कि भाई इसका चेक करवाइए, तो बोलते हैं कि आप रिपोर्ट लिख के दे दीजिए ना यार, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं वो आपके सेफ्टी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इसका कोई इतना भी चार्ज नहीं है, 5 लाख 10 लाख चार्ज नहीं है, एक एक पॉइंट मेरे को चेक करना होता है, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंसुलेशन टेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे कि आरसीडी, ईएलसीबी, वो लाइव चेक आपको करना है। एमसीबी, आपके एमसीबी कौन से टाइप की है, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, और उसका इंपीडेंस कितना होना चाहिए वो भी एक बार चेक करना होता है। तो ये सब ऑडिट के पार्ट्स है, तब आप क्लियर करोगे। जैसे कंटिन्यूटी बॉन्डिंग टेस्टिंग की बात करो, जैसे आपका बस बार से अर्थिंग का कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा, दो अर्थिंग के बीच में कंटिन्यूटी है कि नहीं। सभी लोग आप डायरेक्ट सीरीज करोगे तो मिल जाएगा क्योंकि वाया वाया ग्रिड के थ्रू है, लेकिन पर्टिकुलर दो अर्थिंग के बीच में है कि नहीं है वो भी आपको चेक करना है। तीसरा, बस बार टेस्टिंग है, इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग बस बार में। और पिक चैम्बर का टेस्टिंग करना है। ये लूप इंपीडेंस जो मैंने टीएनटीटी आईटी सिस्टम में बोला था वो है, ये उसमें मैंने कवर किया है कि एज पर एनईसी स्टैंडर्ड की मैंने एक कॉपी ली है, आप देख सकते हो। अर्थफुल लूप इंपीडेंस टेस्ट शैल बी टेकन एटलीस्ट 1 ईयर। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में वो लिखा हुआ है, तो वो भी आपको चेक करना है। अभी उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये पेज में मैंने लिखा 23 सेक्शन 22 पेज नंबर 382 पॉइंट नंबर 12.8, उसमें ये मेंशन किया है। अभी उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। टीएनएस है जो 0.8 ओम इंपीडेंस, टीएनसीएस है 0.35 ओम, एंड टीटी सिस्टम है जो अभी 100% इंडिया में यूज हो रही है, तो वहां पे 20 ओम के नीचे ही होनी चाहिए इंपीडेंस वैल्यू, नहीं कि रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं है, इंपीडेंस है, तो वो आप एक बार उसको ध्यान रखना है। ये ग्रिड इंटीग्रिटी टेस्ट है, ये अभी नए सब सेशन जो जेटको में भी अभी नया क्लोज है 2020 के बाद, कि आपका जो भी नया सब सेशन बन रहा है तो चार्ज होने से पहले थर्ड पार्टी के थ्रू आपको ग्रिड इंटीग्रिटी टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर या लेबर ने प्रॉपर इंस्टॉलेशन ग्रिड किया है कि नहीं किया, वेल्डिंग प्रॉपर किया है कि नहीं किया। क्योंकि जब भी आप चार्ज करते हो और फॉल्ट आया तो वहाँ पे ट्रिपिंग होना चालू हो जाता है, वो एक है। और दूसरा, जितने भी पुराने सबसेशन है, जैसे आप 3, 4, 5 साल आप पकड़ लीजिए, जैसे दहेज एरिया की बात करूँ तो 2 साल 3 साल में इसको ग्रिड इंटीग्रिटी टेस्ट करना जरूरी है। आपका राइजर प्रॉपर ग्रिड के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, गैस के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, तो ये भी ऑडिट करना कंपलसरी है। ये पॉइंट मैंने लिखे कि जो ग्राउंड पार्ट्स मस्ट बी परमानेंट, कंटिन्यूअस एंड इफेक्टिव, जैसे एनएफपीए नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएट, उसमें भी 2000 आउटलाइन में स्टैंडर्ड में मेंशन किया हुआ है। ओएचएस ऑक्यूपेंट सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड में भी ये मेंशन किया है कि आपका जो अर्थिंग का जो कंटिन्यूटी है वो कंपलसरी आपको चेक करना उसमें जरूरी है। हाँ, ये एक नया है मेथड ऑफ मेजरिंग स्टेप टच एंड ट्रांसफार्मर वोल्टेज। स्टेप टच पोटेंशियल भी आप चेक कर सकते हो। अभी मैंने एक सीए का लास्ट मंथ में एक पूरा एग्जीबिशन था, उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग का कुछ सेशन था, तो उसमें आई थिंक सोनल करके मशीन वाले हैं, उनके ऑनर भी आए थे, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि अभी एलवी साइड भी आपको टच एंड स्टेप पोटेंशियल मेजरमेंट करना होता है, तो उसका भी मशीन है उन लोगों के पास। तो डायरेक्ट एक पॉइंट है, आपको मशीन का नीचे पैर में रखना है, दूसरा हाथ पे रखना है, और वहाँ पे आपको टच एंड स्टेप पोटेंशियल है वो लिमिट के अंदर होना चाहिए जब आपने डिजाइनिंग की है वो हिसाब से। तो वो एक है। तो सबसेशन में डिजाइन का 2 पॉइंट मेथड है, 3 पॉइंट मेथड स्टैक फॉल टेस्ट, फॉलो पोटेंशियल मेथड, रेजिस्टेंस मेजरमेंट बाय क्लैप ऑन एंड स्ट्रोक लॉस, रेजिस्टेंस मेथड एफओबी क्लैंप, एंड ग्राउंड इंपीडेंस मेजरमेंट बाय कंप्यूटर बेस्ड ग्राउंडिंग मल्टीमीटर। ये जो है वायबल है मेथड, जो IEEE 81 2013 में भी मेंशन की गई है, स्पेशल मेंशन ये चीज की गई है। तो ये स्टेप पोटेंशियल का है। ये सॉइल रेजिस्टिविटी का मैंने जो बोला कि प्लस माइनस जो होता है रेजिस्टिविटी, एज पर 1-2 स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ा था कि हर साल 12 से 15% सॉइल रेजिस्टिविटी प्लस माइनस होती है। क्यों? इसका मैं बता रहा हूँ, जब आपने ऊपर ग्रेवल्स डाले हैं और वो भी सॉइल रेजिस्टिविटी का भी टच पोटेंशियल में आ जाता है। जब भी फॉल्ट आता है
तो वो भी ड्राई होता है, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, या कई बार मानसून में कम भी होती है। तो आइडियली 3000 ओम मीटर के आसपास ग्रेवल की रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। तो ये भी एक आपके प्रोटेक्शन का पार्ट्स है, तो भी एक चेक करना जरूरी है। ये इलेक्ट्रोड मेथड है जो 3 स्पाइक से आप मेजरमेंट करते थे, लेकिन जहाँ पे आप स्पाइक नहीं डाल सकते हो या एरिया नहीं है, तो वहाँ पे क्लैप ऑन वाला जो मीटर आता है वहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हो। लेकिन उसकी भी एक थियरी है, 99% लोग बोलते हैं क्लैप ऑन में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उसके भी 3-4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि पूरा एक अर्थिंग होगा तो मेजरमेंट नहीं होगा, वो लोड के साथ कनेक्टेड होगा, और उसको क्लैप ऑन करे तो भी मेजरमेंट नहीं होगा। वो लोड के साथ दूसरा अर्थिंग होना चाहिए, तभी उसका पार्ट कंप्लीट होता है। तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो आप जो मीटर लोगे उसमें एक फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला में आपको वैल्यू डालनी है, उसके बाद एग्जैक्ट ये वैल्यू आएगी। तीसरा है आपका जो प्रॉपर पार्ट क्रिएट नहीं होता है, तो अलग से केबल कंडक्टर रन करके दूसरे अर्थिंग के साथ करवा सकते हो, तो वो कंडक्टर के थ्रू आपको वो अर्थिंग मेजरमेंट आप कर सकते हो। सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस एसपीडी, उसका भी कार्टिज आपको चेक ईयर टू ईयर करना है, वो भी कंपलसरी इंटरनल सिस्टम है। तो ये अर्थिंग ऑडिट का है। प्रोटेक्शन पीपीई किट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस आदमी होना चाहिए, कैलिब्रेशन होना चाहिए रिपोर्ट, जैसे कि मशीन से जिस मशीन से चेक करो नया है तो 6 महीने तक कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं है। कई बार कई लोग इंस्पेक्टर 1 साल बोल रहे हैं, कई इंस्पेक्टर 6 महीने बोल रहे हैं, तो एवरेज हम लोग 6 महीने पकड़ के रहते हैं, तो 6 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 महीने के बाद एनएबीएल में आपको टेस्टिंग करवाना होता है। रेजिस्टेंस वैल्यू कहाँ पे कितनी मेजर है, सभी को पूछते हैं कहाँ पे लिखी हुई है। तो एक है जैसे स्टैंडर्ड में IEEE में मेंशन किया है कि रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम से 5 ओम के रेंज के आसपास होना चाहिए। NEC में भी मेंशन किया, IS में ग्रिड मेंशन ही किया है। तो नॉर्मली ग्रिड की वैल्यू 1 ओम से नीचे आ जाती है, तो अर्थिंग रिलेटेड जो वैल्यू आपकी सेफ है, मैं अर्थिंग सिस्टम की बात नहीं कर सकता, लेकिन अर्थिंग ग्रिड की वैल्यू सेफ है। हाँ, ये सर ये इंडस्ट्रीज के हिसाब से। तो ये है कंपनी का, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। हमारा मेन जो काम है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई, हाँ, इंस्टॉलेशन, अर्थिंग सिस्टम, लाइटिंग प्रोडक्शन। 2013 से कंपनी है। सचिन जी है, इसमें 32,000 स्क्वायर फीट का खुद का गोबर कोटिंग का प्लांट है। ये एसपीई है, सीबीआईपी है, बीएनए सिगरे के मेंबर है। टाकलकर सर के साथ हम लोगों ने टेक्निकल कोलैबोरेशन हम लोगों ने किया है, और उनका हमको टेक्निकली बहुत सपोर्ट मिलता है टाकलकर सर के साथ। और 2016 और 17 में हम लोग एक्चुअली मिले थे, तो ट्रांसमिशन सबस्टेशन में टेक्निकली सपोर्ट उनका अच्छे मिलता है। ये हमारी पूरा प्रोडक्ट है। ये पैकेज के हिसाब से भी हम लोग काम करते हैं, जैसे डिजाइनिंग में सॉइल टेस्टिंग, इन्वेस्टिगेशन, डिजाइनिंग, साइड विजिट, पीओक्यू बनाना है, वो भी हम लोग करके देते हैं। सेफ्टी ऑडिट में करते हैं हम लोग, एनर्जी ऑडिटर नहीं है। सेफ्टी ऑडिट का सिर्फ एज पर स्टैंडर्ड रिपोर्ट और उसके बाद क्या एक्शन लेना है वो करके हम लोग देते हैं। जैसे कि जीजीटी ग्राउंड ग्रिड टेस्टिंग हम लोग करते हैं, खुद का मशीन है, स्वीडन से मंगवाया है, तो उसका हम लोग लाइव सबस्टेशन में 66 केवी के लेके हम लोग आगे करते हैं। लो इम्पीडेंस भी करते हैं। लाइटिंग प्रोटेक्शन डिजाइन नया है, वो भी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों करते हैं एज पर 62305 के हिसाब से। पुराना लाइटिंग सिस्टम लगा है, लाइटिंग एरिया, उसका भी डिजाइन करते हैं, पूरा ऑडिट करते हैं, गैप पूरा फिलअप करते हैं, क्योंकि 10 साल पहले आपने बनाया था जो बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की एप्लीकेशन चेंज होगी, सराउंडिंग में दूसरी बिल्डिंग बनी है, तो वो पूरा एनालिसिस करते हैं। ये पूरा हमारा कंपनी जहाँ पे डायरेक्ट अप्रूवल है वो है। वीडियो तो नहीं चल रहा। सोशल मीडिया पे भी हम लोग हैं, जहाँ पे एजुकेशन स्लॉट हम लोग देते हैं। ठीक है। Okay, please come on the dais. Please. I request we will take 2 or 3 questions after the normal formalities.